Ansika, please continue. Okay, sorry for the disturbance. There was a little technical glitch. Really sorry for that. Okay, so first of all, a very good morning to everyone. A very warm welcome to all of you for joining us today. The Society of Alumni Affairs (SA) is glad to bring this interaction as part of the UPSC guidance community. Before we begin, let me briefly introduce myself. I am Anshika from first year from IIT Jodhpur only. And I am Shudhar Srivastav from first year BTech Chemical Engineering, and we will be hosting the today's session. Preparing for the civil service often brings many questions about strategy, resources, where to begin. And through this initiative, society wants to create a space where students directly can connect from the people who have explored their journey, can learn from their experience and insights. And this session continues the series. Following our privileged interaction, like previously, we have also interacted with the IRS from the batch of 2013 batch itself. He was Mr. Sanjay Kumar Rao, and that interaction was very wonderful. Students have gained many insights from it, and we are very much happy to see this community taking, like, shaping gradually. So let me introduce the guest of today's session. Today we have Miss Shivanjali Kamble with us. She is the alumni of IIT Jodhpur from the batch of 2012 itself. And if we talk about her journeys, and she completed BTech in Computer Science Engineering from IIT Jodhpur. Later, he pursued PGD from IIM Kolkata. Her journey reflects a unique combination of technology, policy interest, public thought. She is also an educationist, environmentalist. So she has a very broad experience of many fields. She has cleared UPSC Civil Services exam prelims 4 times, placing among the top 1 percentile across the India. Beyond the examination itself, Shivanjali brings a broader perspective as a political thinker, educationist, and environmentalist, and has been actively involved in the conversations around the policy reform and greater representation of women in governance and public leadership. Before we begin the interaction, I would also like to acknowledge Manaram, an IIT Jodhpur alumni from 2013 batch, whose support and encouragement helped us organize this session. We are very grateful for his guidance. Thank you, Ansika, and all ITJ Society, Alumni Society, for doing this session and introducing me. Today, we mostly focus on the UPC prelim. You know that after 2 months in May will be a prelim, UPC prelim. So हमारे साथ शिवांजलि मैम जुड़ी है, तो शिवांजलि मैम प्लीज़ आपका थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और हम स्वागत करते हैं आपका. तो अंशिका प्लीज़ शिवांजलि मैम को इंट्रोड्यूस करिए आप. Okay, so to begin with, I like to call ma'am, please. It would be really nice if you could tell us about your journey, how you choose the civil services path, and some resources, your whole journey, how you did the preparation. Okay. Yeah, is it visible? Audible? Yes, ma'am. Yeah, good morning, everyone. As I think briefly introduced by already the members of community. Um, Today's session I would like to mainly focus upon preparation strategy itself rather than wasting upon the things. So if particularly if my thing if related, I did completely my self studies. I never whatever online resources available or I never stepped out of home to go to any places like traditionally people go to Delhi or something. My experience and my understanding and my
whatever little success in this exam is there is based upon what I did alone in the home. It might be useful for you to, during by the time you end your college, you will understand how to, whether to navigate further by alone or to go into the popular coaching cities. So that is one factor. And secondly, my advice to if you people are very youngsters, like first, second year, third year, fourth years, it's not advisable to much go into the studies of UPSC for now being, because your graduation itself is very important. We need to clear that, because that is always a good option that you can have good placements from there itself and do a good work. And secondly, even if you enter into any field of UPSC or any civil services, your graduation is some or the other way going to help you. So it's better to have a good hand on your graduation. Thirdly, the UPSC studies are very comprehensive, very highly exhaustive, and so it requires a focused attention and not something which is distracted between your existing studies, and then already college activities will be multiple, and then again into getting UPSC. So it will एक भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसे 4 जगह अगर पैर रखोगे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, अनटिल अनलेस कि भाई आपको पता ही है कि मुझे बचपन से करना था और मुझे लाइफ में वही करना है, कि तो ठीक है, तो मैंने छोड़ के भाई सब वही के लिए मैंने जिंदगी दे दी, तो वो फैक्टर जिसके लिए है वो कंटिन्यू कर सकता है. तो वो एक है. Preferably you should start studying or checking the new papers and all by, let's say, 4th year of your engineering, whatever field you are into, whichever graduation UG you are doing into. आपका जब आपका graduation का last year है, आप उस time start करो. And then second thing is इसमें आप popular cities में जा सकते हो, जैसे दिल्ली वगैरह है, good environment रहता है. और अगर आपको अकेला करना है तो वैसे भी आजकल, बिकॉज लास्ट 7-8 ईयर्स में इतने रिसोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं कि दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल. एंड किसी छोटे छोटे शहर में भी अपने अपने सर्कल्स रहते हैं यूपीएससी के, तो हर स्टेट में रहता है, लेकिन हर स्टेट के कैपिटल में भी रहता है कुछ कुछ सर्कल, तो उतने लोग आपके लिए काफी हो जाते हैं. यू नीड नॉट नीड अ वेरी very big place like Delhi, like this. Also उसकी disadvantages अलग ही है, आपने cases सुने ही होंगे. So that is one factor. So how to, if you are into studies, how to, whether to go into the study UPSC studies or not, वो factor था. Second factor आता है कि whether you want to do UPSC, it's a right option or not. Then वो तो वो आप सर्च करते ही रहो, मतलब इससे मेरे जवाब से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, किसी पे जवाब. You have to see the profiles, you have to see the interviews of some people who have worked in IAS, IPS, IRS or all that fields, or let's say they have worked, let's say अभी एक एग्जांपल अभी सामने आता है तो अजित डोवाल. Ajit Doval was he is a national security advisor now, and he is a person at the age of 80 also. He is working. I mean, the kind of intelligence, the experience, and everything he has, and still defending our country. He was also a civil servant, and then how his journey was. He did so many things. And India's all the major strategies are designed by him. So if you listen to the interviews and all that things, then you will understand whether this service whether the work is something is interesting to you or not, और यू वांट टू बी इन दैट. सो ऐसे 10 लोगों के, 15 लोगों के, 20 लोगों के उतनी ही देखो आप, वो देखते रहो आप कभी वीकेंड में, कभी या महीने में एक बार किसी का, या तो ऐसे करके आपको आइडिया लग जाएगा ठीक है ये एक्चुअली है क्या फील्ड, इसमें कौन सा एक्सपीरियंस रहता है, कौन सा वर्क रहता है, और वेदर आई विल बी सूटेड एंड आई विल बी इंटरेस्टेड ऑन ऑल दिस एस्पेक्ट. सो वो एक फैक्टर हो गया. तभी आप इवन श्योर हो गए ना, तो आप यूपीएससी को स्टार्ट करना, क्योंकि एक बार ये यूपीएससी स्टार्ट हो गया ना तो उसको 4 साल तो आप पकड़ के ले लो कि 4
साल तो लगती है। तो ये डोंट एक्सपेक्ट कि मैं अभी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो रहा है मार्च में अप्रैल में एंड मैं जून में एग्जाम दे रहा हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, तो वो तो नहीं हो सकता, वो किसी को भी नहीं हो सकता। यू डोंट गेट इनटू दैट। इवन बीइंग एन आईआईटीएन वी आर वेरी ऑर्डिनरी पीपल, हमसे भी बहुत तेज लोग वहां पे बैठे हैं एंड जो बहुत सालों से मेहनत भी कर रहे हैं, हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, नॉट ओनली यू नो आईटी और आईआईटी लाइक सो इंडिया में। सो ये है कि डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट्स, don't waste your year, don't waste, get into frustration by immediately appearing to the civil services just after your graduation, and take your time 1 year at least for preparation, then you appear, and then you understand the journey. If you want to continue within 1 year, do you decide whether you okay this is what I want to continue, and then उसके लिए फिर 4 साल देने ही पड़ते हैं। इमीडिएट सक्सेस तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें थ्री स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। एंड प्रीलिम्स में पूरा एमसीक्यू रहता है, जैसे हमारा आईआईटी का, आई डोंट मतलब मेरे आईआईटी का आई डोंट नो अभी पैटर्न कैसे है जेईई का, बट आईआईटी का जो पैटर्न था तो एमसीक्यूज जैसे रहते हैं, तो वो रहता है, इट इज मोर अपन कंसेप्चुअल। आई विल कम टू दैट। सेकेंड स्टेज वो रहता है एग्जाम मई एंड में या जून स्टार्टिंग में। देन उसके बाद रहता है सितंबर अगस्त एंड में मेंस एग्जाम रहता है, जिसमें 9 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो 9 डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो पूरा यू नो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, उसको GS1 GS2 बोलते हैं, बट ऐसे ऑल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एवरीथिंग विल कवर। सो उसमें ये 9 पेपर्स रहते हैं, तो उतने देर में वो लिखना पड़ता है। मेनली आई फाउंड दैट व्हाट माय फॉल्ट वाज, आई नेवर हैड दैट प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, यू नो, बिकॉज आईआईटी में इतना कुछ ऐसा लिखने वाला एग्जाम तो रहता नहीं है। उसके बाद आईआईएम में तो हमें प्रेजेंटेशन ही रहते हैं, उसके बाद तो कभी लिखा ही नहीं लाइफ में, ऐसा हुआ कि 9th-10th के एग्जाम के बाद। तो वो एक मेंस का रहता है कि उसमें लिखने की हैबिट, उसमें क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यू यूज व्हाइल राइटिंग, सो दैट आर व्हाट मैटर्स। एंड देन फाइनली कम्स इफ यू क्लियर दिस स्टेज, तो पहले 10 लाख लोग प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसमें 5 ही लाख अपीयर करते हैं, एंड उसके बाद 3000 लोग मेन स्टेज के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो सब ऑगस्ट का होता है। 3000 पीपल आर सिलेक्टेड, एंड देन 3000 पीपल राइट द no sorry I am sorry 13,000 अराउंड पीपल सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। तो 13,000 लोग मेंस लिखते हैं, तो 13,000 के बाद उसके बाद इंटरव्यू के लिए 3,000 लोग सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के स्टेज में। और इंटरव्यू के स्टेज के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए जाते हैं 3,000 लोग, और फिर उससे फाइनल सिलेक्शन जो होता है 1,000 लोगों का होता है। तो 1,000 लोगों में भी उसमें ब्रेकअप है, देन कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस, पहले के 100 लोग, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज एंड एवरीथिंग। सो लेट्स से 200 पीपल गो इनटू आईएएस, 200 इनटू आईपीएस, देन आईआरएस है, आईआरटीएस, रेलवे की है, इनकम टैक्स की है, ट्रेड की है, ट्रेड सर्विसेज आर देयर, देन देयर इज अकाउंटिंग सर्विसेज एंड ऑल दिस comes into factor. So वो आप एक बार वो लिस्ट चेक कर लेना, we can also share that. So you need to know कि अगर मेरा नंबर टॉप रैंकिंग में नहीं आता है तो मैं मुझे दूसरी सर्विस मिलेगी, and I should be ready to take on, क्योंकि अभी रिसेंटली यूपीएससी ने रूल्स भी चेंज किए हैं कि अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हो तो ये अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो। पहले तो अलाउड था कि चलो कितने भी अटेम्प्ट दे दो, लाइक अगर आप सर्विस में हो तो भी, यू नो, वंस यू आर सिलेक्टेड यू कैन स्टिल अपीयर फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जाम। दिस टाइम दे हैव चेंज सम रूल्स। सो वो है कि कोई भी सर्विस मिलेगी तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्या आप रहने के लिए तैयार हो, और यू थिंक दैट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके कॉर्पोरेट में कैसी है, यहाँ पे कैसी है, कि यू विल प्रिफर दैट जॉब एंड दिस जॉब। सो वो एक रहता है। So now getting to straight to the preparation. I hope we'll come back to again other the queries of whether you want to do. So abhi I will go back directly to how to prepare for this. I'm just trying to share the screen. Yeah, is the screen visible? Okay. So in case anything is disrupting in technical, please let me know immediately. So this is now जनरली आप प्रीलिम्स में देखोगे तो ये टेंटेटिव सब्जेक्ट्स है प्रीलिम्स के, कि इसमें ब्रॉडली हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स।
ओके सो इसमें भी इसका बाइफर्फिकेशन यहाँ पे है, क्योंकि हिस्ट्री को भी बाइफर्केट कर सकते हैं, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल, मॉडर्न, ऑन ऑल दैट थिंग्स. सो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कहाँ पे है, कितने आ रहे हैं. तो ये यू नो इट इज सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस. इफ यू वांट आई विल शेयर दिस पीपीटी अगेन विद यू. बट अगर आप टेंटेटिवली ये वाले इसमें देखोगे ब्रॉड कैटेगरीज में, तो आप देखोगे कि इसमें है ना पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस है. इफ यू सी हियर पॉलिटी इज 15 क्वेश्चंस. 15 ओके. तो 15 क्वेश्चन आते हैं. तो पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट वेयर इट इज ऑलवेज वेरी रिलायबल सब्जेक्ट. ओके तो इसमें प्रिपरेशन करना बहुत you know return on investment is better. Then it comes like subjects like you know science, technology. I'll just come to it. I'll come to one by one strategy. So you have, I hope you understood what are the subjects, different subjects. Now one more thing I want to highlight to you before I begin, because आप अगर किसी भी इंसान को पूछोगे जो 5 साल पहले या 10 साल पहले एग्जाम दिया होता, तो उनके लिए स्टैटिक वेटेज, स्टैटिक सब्जेक्ट की वेटेज, स्टैटिक मतलब सपोज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या समथिंग एंशिएंट व्हिच इज लाइक नॉट गोइंग टू चेंज, राइट, इट इज एज इट इज है सब्जेक्ट, तो उसका वेटेज कई बार ज्यादा होता था, स्टैटिक सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी का. बट अभी क्या हो गया ना, अभी बहुत ही यूपीएससी डायनामिक हो गई है, बहुत रिलेवेंट हो गई है. इट इज द स्टडीज आर एक्सट्रीमली एक्साइटिंग बिकॉज हर दिन नया कुछ होता है दुनिया में, सब जगह, एनवायरमेंटली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और यूपीएससी अभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट वी आर नोइंग एवरीथिंग एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस दैट इन एग्जाम. सो यूपीएससी को वही चाहिए कि तुम अभी कितने अपडेटेड हो. तुम मुझे उनको भी नहीं चाहिए कि आप 100 साल पहले क्या कर रहे थे, लाइक यू नो व्हाट इज दैट हैपनिंग इन द वर्ल्ड. सो इट इज मेनली दैट इज वेरी नाइस फैक्टर. So I'll begin with the economics subject. So economics एक subject ये है कि ये ऑर्डर मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरे स्लाइड में, इसी ऑर्डर से आप, आई वुड प्रिफर दैट यू गो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी. So many people make a mistake, like somebody was talking to me that they start with starting reading ancient medieval history and they come to the stone age and all that things, and उसी में आपका you know एक महीना 2 महीने इसमें ancient medieval में चले जाते हैं and you get bored with the studies and then you leave the studies. So you cannot find the joy of what is actually UPSC. You can never decode the UPSC. So UPSC क्या है? UPSC क्या इंसान आपको बनाना चाहता है? What is the wisdom you need to carry for UPSC is actually given by the first step, these two subjects, which is economics and polity. Firstly, economics आप start करो. So economics में ये है कि ये he is the person Brunal sir, who is available on Unacademy coaching जो है ऑनलाइन. Unacademy में आप क्या कर सकते हैं ना, लोएस्ट कोर्स, लोएस्ट टिकट प्राइस का कोर्स ले सकते हो. मतलब कुछ 3 महीने का कोर्स होगा, कुछ 8-10 हजार रुपए का. You know, that type of course you take when you want to do UPSC. Don't take it now. When you want to do it, you take that lowest course. उसमें क्या है ना, 1 महीना बैठ के, 2 महीने बैठ के UPSC मृणाल सर के सारे लेक्चर कर लेना. उसके जो भी उनके 60, 70, 80 चैप्टर लेसन्स रहेंगे तो कंटिन्यूअसली कर लेना. तुम मृणाल सर के, जनरली आई हैव द हैबिट कि मैं एक सब्जेक्ट लेती हूँ तो मैं एक सब्जेक्ट पूरा वही 1 महीना करती हूँ. मतलब बिगिनिंग में मैंने जब ऐसा किया था तो उससे क्या रहता है ना कि कंटिन्यूटी रहता है. अगर मैंने ऐसा किया कि मैंने 2 घंटे आज इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फिर मैं 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ूंगी, फिर 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगी, तो मुझे एक सब्जेक्ट में लिंकेज नहीं रहता. एक सब्जेक्ट में भी एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का 5th चैप्टर से लिंकेज हो सकता है. तो वो लिंकेजेस और एक कनेक्टिविटी विजडम में ड्रॉप करने में डिफिकल्टी हो जाती है. इफ यू आर कंटिन्यूअसली स्टडीइंग, then you can relate the 10th chapter with the first chapter. You know actually holistically कि भाई ये हिस्ट्री में ये क्रोनोलॉजी एक्चुअली मूव हुई कैसे थी. तो वो होता है if you in study in one go one subject. So that is how I began, and actually I think that
that helped also me. So I begin with economics, जो कि मृणाल सर का आता है ना अकेडमी में, आप ये कर लो. एंड उसका कभी भी 1 लाख रुपए का कोई कोर्स खरीदना ही नहीं. नेवर गो इनटू यू नो कि एक क्लास XYZ बिग ब्रांड है, 1 लाख रुपीज उनको दे दिए, या अभी तो 1 लाख में 2 लाख रुपीज दे दिए, एंड यू टीचर्स ऑल द सब्जेक्ट एंड दैट्स इट. यू शुड ऑलवेज अप्रोच सब्जेक्ट वाइज कौन सा टीचर बेस्ट है, बस उतनी जगह जाओ सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि हर ऐसे नहीं कि हर कोचिंग क्लासेस की हर सब्जेक्ट पे एक्सपर्टाइज होती है. ओनली 1 टीचर और 2 टीचर हैज द एक्सपर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो यू हैव टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर टीचर. सो दैट इज गुड एडवांटेज विद द अनअकैडमी एंड ऑल दैट दे यू नो you have a small ticket price and you also can have options to choose. तो मृणाल सर के अनअकैडमी के लेक्चर्स है ना, तो उसमें क्या है ना, वो बेसिक कंसेप्ट तो इकोनॉमी के सारे कवर कर लेंगे, उसके बाद सारे चैप्टर, उसके बाद he touches all other subjects. So he will touch something polity, so he will touch some schemes, he will touch ministries, he will touch society, social issues, you know, artificial intelligence, science के issues. So he will be touching broadly all the subject. So इसकी वजह से ना तो आपको उस डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इंट्रोडक्शन मृणाल सर से हो जाती है. और उसके वो डिफरेंट सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन होने के बाद उसमें उस सब्जेक्ट में particularly एंटर करना इजी हो जाता है, rather than you know being blank in that subject. So वो एक है. दूसरी बात वो इंग्लिश में सिखाते हैं, तो I hope I am talking in Hindi, the audience is able to understand. If anything, let me know if anybody wants particularly to be in English only. So in English, so Mrunal sir takes in English, like Hindi and English mix, so he explains everything in very layman language. अभी UPSC प्रीलिम्स में ना कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, और इनफैक्ट गुड थिंग फॉर अस इज नाउ आजकल कुछ टेक्निकल छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि यू नो हमारे लेट्स से देयर विल बी सम लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कुछ रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में. नो दिस इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको लगाओ और वो आंसर आ जाएगा. इट्स अ वेरी स्मॉल कंसेप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट या कैपिटल डेफिसिट समथिंग. सो वो हम अभी जो IIT का एग्जाम जिसने दिया हो उनको तो यू नो यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड. सो ये अगर एक बार भी आपने वो कंसेप्ट पढ़ लिया हो, ये समझ लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया हो, तो यू डोंट हैव टू worry much. So it is also that sometimes easy also. So इसमें ये जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ट्रेड होता है हमारा एक्सटर्नली इंटरनली, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल हेडविंड्स क्या है, ट्रम्प के सैंक्शंस क्या है, ये सब इकोनॉमिक्स में आएगा कि यू नो यूरोप के साथ क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमारी अभी यूरोप के साथ हुआ, EU के साथ या UK के साथ हुआ, चाइना के साथ ट्रेड कितना है, हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है. सो all this will come in this balance of management. Then fiscal management आएगा जिसमें आपके कितने डेप्थ है, इंडिया का डेप्थ कितना है, इंडिया के बाकी चीजें कितने है, मतलब यू नो. सो वो फिस्कल मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स है वो सारे इंडिया के आएंगे इकोनॉमिक्स के. मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड ऑल, ये RBI का रोल, BFSI इज द बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, ऑल द RBI रोल एंड बैंकिंग सेक्टर की उनका मेन रोल होता है कि यू नो फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोगों में लोन्स देना, कंपनीज को लोन देना, MSMEs को लोन्स देना, ऑल दिस थिंग. बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमी एक्चुअली रन्स, राइट. लोन्स मिलते हैं तो कंपनी, नई कंपनी बन सकती है, स्टार्टअप नहीं बन सकता है, फिर बढ़ सकता है, इकोनॉमी रन्स, द साइकिल रन्स, स्पाइरल्स. सो ऑल दिस थिंग्स मैक्रो इकोनॉमिक लाइक इंडिकेटर्स लाइक GDP है, प्राइस इन्फ्लेशन है, ऑल दिस थिंग्स विल बी कवर्ड. देन इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है, फार्मा इंडस्ट्री क्या कर रही है, यू नो नाउअडेज वी आर फोकसिंग ऑन frontier technologies and emerging industries like artificial intelligence, अभी सेमीकंडक्टर है, क्वांटम है. तो इसमें इंडिया अभी क्या क्या स्टेप्स ले रहा है. अभी AI का जो समिट हुआ उसी में कुछ डिसीजन हुए क्या, या कुछ एग्रीमेंट्स हुए क्या, या अभी गूगल अमरावती में क्वांटम वॉली ओपन कर रहा है. तो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू नो कि वेयर आर द इन्वेस्टमेंट गोइंग, हाउ द इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम फॉरेन और इंडिजिनियसली अगर हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं. तो हर सेक्टर में क्या हम कर रहे हैं, ये ब्रॉडली इंडिया के टॉप
सेक्टर्स कौन कौन से है, तो अभी ऑयल में क्या चल रहा है, एवरीथिंग दिस विल ऑल ऑफ द इकोनॉमी, एंटायर ब्रॉडर पिक्चर ऑफ इंडिया इज इकोनॉमी कम्स, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी आता है जिसमें हमारे पास रोड्स है क्या, रेलवेज है क्या, पोर्ट्स है क्या, कैसे चल रहा है, आर वी मॉडर्नाइजिंग आवर पोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड एग्रीकल्चर एक आता है जो एग्रीकल्चर में सारा आएगा क्योंकि हमारे मेजर पॉपुलेशन अबाउट हाफ ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज स्टिल इनटू एग्रीकल्चर, तो वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसमें क्या इश्यूज है ये लोगों के, फार्मर की इनकम कम है, डबल करनी है, टेक्नोलॉजी क्या है, स्पेशली एज ऑफ नाउ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज द मेन प्रायोरिटी। इंडिया को क्या करना है, पूरा एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये करना है, और बहुत बड़े अच्छे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो इंडिया का क्या हो रहा है कि यूपीसी में जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो रिलेटेड टू मोर टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं, यू नो विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, और इंडिया का क्या मिशन है अभी इसका ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, अरे बेटा क्या क्या okay, sorry, I have my daughter, so she was coming. Then second thing is, so ये basically economics is very much current, it is not related to anything past, so ये बहुत ही enjoyable, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ में आप कहीं भी यूज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, कोई कंपनी में प्लेसमेंट होती है, यू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग विच सेक्टर इज वर्किंग, यू व्हाट, अगर एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है तो आपको पता है कि कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, एवरीथिंग यू नो द होलिस्टिक सिनेरियो। दिस इज आई थिंक अ सब्जेक्ट वी शुड, everybody should learn for their just only to have a quality professional life, not only for UPSC। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो यूपीएससी में तो आपके इसमें बहुत सारे अच्छे नंबर आएंगे, तो यूपीएससी में ये है। एंड सेकेंड थिंग इज बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी ईयर, द बजट कम्स, एंड बजट एक यूट्यूब में, ये सब यूट्यूब की सारी चीजें है, तो शिविन चौधरी सर है जो सारथी IAS के है, तो उनका बजट का 3 hours का ये होगा या लेक्चर यूट्यूब पे फ्री में रहता है सब ये से, तो यू कैन सी द बजट एनालिसिस। तो इंडिया के नए नए स्कीम्स क्या है, या इस बार क्या अनाउंस किया है, इंडिया का कैसे ग्रोथ रेट, जीडीपी, एवरीथिंग रहता है, वो सब उसमें आ जाता है, मतलब अभी नए स्कीम्स क्या आएंगे, एवरीथिंग, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एवरीबडी। इनफैक्ट इफ यू, बिकॉज आई डिड MBA, एंड हम कॉर्पोरेट में क्या होता है ना, जैसे जैसे तुम हायर लैडर पे जाते हो, मैनेजमेंट में जाते हो, तो हायर मैनेजमेंट ऑल्सो कीप्स लुकिंग, एवरी बिग कॉर्पोरेट्स, बिग हायर मैनेजमेंट पीपल लुक आफ्टर द बजट्स, एंड उसी में जैसे बजट आता है ना तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हिलता है, यू नो, पीपल स्टार्ट एनालाइजिंग कौन से कहाँ पे ये है, एंड उसी नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट की एकदम मूवमेंट दिखती है। तो इट इज लाइक एवरीबडी स्टडिंग बजट, you even if they are not into UPSC, so still the budget is going to be helpful, and it is going to be professionally enriching and important for the industries. So ये है। इसके बाद होता है इकोनॉमिक सर्वे, एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारे उनकी जो अभी तक उन्होंने किया उसका पूरा समरी होता है, तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं है, उसका यूट्यूब में बहुत सारे ये मिल जाते हैं, कोई एक्सप्लेन कर देता है, तो वो देख लेना। एक होता है फाइनेंस कमीशन हर साल नहीं आता, कभी एक आता है, अभी आया है नया, तो ये, और फिर ये करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स विल कम अगेन ऑल टुगेदर। सो ये इकोनॉमिक्स के लिए ये करके ही रखना, ये अगर ये नहीं करोगे, अगर मुराद सर का नहीं करोगे तो बाकी आपको कुछ नहीं समझ। आई डोंट थिंक मार्केट में अभी मतलब ऐसा कोई था, क्योंकि कि जो इनके लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेमैन इंसान के हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकता है, कॉम्प्रेहेंसिवली उनके नोट्स रहते हैं, उनके ना एक PDF रहते हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन, प्रॉपरली कीवर्ड्स, प्रॉपर द एवरीथिंग, तो उसमें पॉइंटर टाइप रहते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैंडआउट्स रहते हैं मृणाल सर के, तो वो हमेशा के लिए यूजफुल रहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस। सो इट इज वेरी नाइस टू गो स्टार्ट विद बिगिन विद दिस सब्जेक्ट, डोंट एंटर बिगिन विद एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एनी हिस्ट्री और दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट।
देन यू कम टू पॉलिटी. पॉलिटी इज लक्ष्मीकांत सर की मतलब एक बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. आई गेस पीपल हु आर ऑलरेडी हियर दे नो दैट, एनीबडी कैन फाइंड इट आउट ऑन Amazon. तो ये बुक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. बट बेटर है कि आप लक्ष्मी कॉन्स्टिट्यूशन पहले किसी का सुन लो, पढ़ लो, किसी रिसोर्सेज से एक बार सुन लो लेक्चर्स, एंड देन यू रीड दिस बुक. वंस यू जस्ट एक बार सुन लिया तो ये बुक ना आपके लिए बाइबल बन जाती है. ये बुक ना आपको एटलीस्ट 20 टाइम्स पढ़नी है. नाउ इट मे साउंड एग्जैगरेटिंग, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. 20 टाइम्स मतलब ऑफ कोर्स इट बिकम्स व्हेन यू आर इनटू 4 टाइम्स इनटू 4 इयर्स इन द थिंग्स, बट एटलीस्ट अगर आप पहले अटेम्प्ट के लिए जाओ तो एटलीस्ट इंश्योर कि 5-6 बार मैंने ये बुक रिवाइज कर ली है. क्योंकि क्या हो जाता है ना कि इसमें समझने के लिए ही बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नर है, स्पीकर कैसे वर्कआउट करता है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई क्लोज द डोर. ओके, सो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बाइबल ही होता है. मैंने तो मतलब मेरे हाईलाइटिंग इतने हैं, मैंने ये बुक्स में इतने हाईलाइट करके रखा हुआ है, और इतनी बार हर बार ये बुक पढ़ते हैं तो तुम आपको नई चीजें पता चलती है. जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है, तो उसमें जो चेयर, अगर आपने कभी देखा होगा पार्लियामेंट का बजट सेशन इन द यूट्यूब और समथिंग अभी हुआ था, तो उसमें लोकसभा का एक स्पीकर रहता है और राज्यसभा का एक चेयरमैन रहता है, जो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो मेन चेयर पे बैठते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, लाइक मॉडरेटर ऑफ द हाउस. देन there are very tricky differences between what is the powers of Lok Sabha's स्पीकर एंड राज्यसभा. कहने के लिए तो दोनों पार्लियामेंट की ही बॉडीज है, बट स्पीकर इज डायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन, हाउस से इलेक्ट होता है. ये राज्यसभा में स्पीकर जो चेयरमैन होते हैं वो हाउस इलेक्ट नहीं करती, उसको अलग से इलेक्ट करते हैं, उसकी पावर्स अलग होती है, उसकी वोटिंग राइट्स अलग होती है. तो कई बार ना वो ट्रिकी क्वेश्चंस यूपीएससी में वो डाल देते हैं एंड मिक्स कर देते हैं इनकी पावर इनके साथ, speaker's power with the chairman, and they will mix the powers and they will give you confusing options in the UPSC prelims question paper. And then you need to understand, नहीं ये पर्सन भाई ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है या ऐसा है, एंड इसकी पावर्स वैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी वैसे. सो यू नीड टू कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो डिटेल्ड, उसको आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये एग्जैक्ट यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ पे सेम है. तो उसमें वो गेम्स बहुत खेलते हैं यूपीएससी. इट ट्राइज टू मेक द ऑप्शंस कंफ्यूजिंग एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू आर अनेबल टू, you are choosing mostly wrong answers. So उसके लिए conceptual clarity बहुत होनी चाहिए. बारकाई से हर एक चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए वो चीज जितनी बार आप रिवाइज करोगे, अगर 5 बार रिवाइज करते हैं तो आपको न्यू पर्सपेक्टिव पता चल जाता है. तो इसके लिए लक्ष्मीकांत फॉर एवरीबडी, नॉट इवन मी, आप इंडिया में किसी भी को पूछ लो, वो ही बाइबल रहता है. तो ये है. नाउ कलेक्शन ऑफ जजमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मेंस. प्रीलिम्स के लिए ज्यादा नहीं रहेगा हेल्पफुल, बट मेंस के लिए ना आधा पेपर इसमें ही निकलता है. ये पॉलिटिक का जो मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है ना, तो अभी गवर्नर का कोई इशू चल रहा है, तो कि गवर्नर हर स्टेट का एक गवर्नर होता है और एक चीफ मिनिस्टर होता है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन रहता है. तो उनके इसमें सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजमेंट दिए हैं. सो कलेक्शन ऑफ इट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट्स कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए या गवर्नर को इतने पावर्स है या नहीं है. तो ये सब जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हर चीज के लिए जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के. सपोज एक मैरिज है तो मैरिज के लिए प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, डाइवोर्स है, दिए, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया. हर चीज में लिए, सोसाइटी की है, पॉलिटिक्स की है, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन कर सकता है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को चूज कर सकता है, ये व्हाटएवर, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. तो यू नीड टू कोट दैट इन एवरी आंसर.
एक क्वेश्चन अगर इलेक्शन रिलेटेड है तो यू नीड टू गेट कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, उन्होंने ये ऐसा बोला है। हाँ, तो ये जजमेंट का पहले से ही कलेक्शन आप तैयार रखना। जब भी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें ना, एक अलग से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना कि जस्ट जजमेंट लिखना, जस्ट गवर्नर टॉपिक, उसके सामने नेम ऑफ द केस एंड जस्ट वन लाइनर व्हाट इट मींस। सो ये कलेक्शन हमेशा के लिए यूजफुल रहता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप जाओगे सोचने ढूंढने लगोगे ना तो मिलते नहीं है। तो वो एक है। देन इसमें पॉलिटी में आता है गवर्निंग बॉडीज। ये होता है कि इसमें आप स्टैटिस्टिक किसी भी स्टैंडर्ड वेबसाइट से देख लो, स्टैंडर्ड वेबसाइट्स होती है, विजन आईएएस और वेबसाइट इज देयर, दृष्टि आईएएस इज देयर, ऑल उसमें से आपको बॉडीज मिल जाएंगे, लाइक ईडी इज देयर, एनफोर्समेंट डायरेक्टर इज देयर, सीबीआई इज देयर। सो ऑल these bodies you need to cover, government bodies, whatever other bodies also, including the election commission, or UPSC itself is a body, constitutional body. So all that bodies you have to get cover कि उनका क्या किस लिए बॉडीज है, क्या पावर्स है, क्यों बनाई है, कब बनी है, ऑल दैट। एंड देन उसके साथ में आपको उसके करंट अफेयर जोड़ना है। तो अभी उसके ऊपर कुछ ईडी के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इज गोइंग ऑन रेडिंग, समटाइम्स केसेस जजमेंट करंट अफेयर्स में आता है या जजमेंट्स में आता है कि ये ईडी ने सही नहीं किया या ऐसा नहीं किया या उनका कन्विक्शन रेट कम है या समथिंग। सो व्हाटएवर यू नीड टू बी अपडेटेड विद दैट। सो इसलिए करंट अफेयर्स एडिंग टू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंटरनेशनल रिलेशंस इज सेम, उसको आप बॉडीज जो है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के है या इंडिया के रिलेटेड मेनली बॉडीज है, ब्रिक्स है, SCO है, ऑल दैट। सो ये बॉडीज पहले से आप प्रिपेयर करके रखो। तो आप बस नाम डालोगे ना बॉडी का एंड उसके जस्ट यूपीएससी डालोगे, सपोज आई डॉल ब्रिक्स BRICS, ओके, ब्रिक्स इज देयर एंड ब्रिक्स डैश यूपीएससी अगर मैंने डाला तो ये टॉप वेबसाइट्स आ जाती है विजन आईएएस और इसकी, उस तरह से आप डाटा ले लो, बेसिक पॉइंटर ले लो, रख लो। और उसके बाद करंट अफेयर्स में न्यूज में कुछ भी आता है, यू कीप एडिंग ऑन दैट कि ओके। सो ये एक रहता है मॉडल। एंड देन ये पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जो किया था वो मुदित गुप्ता सर से किया था, यहाँ से अनअकैडमी से मैंने खुद किया था। यू मे डू फ्रॉम एनीबडी। वो कोर्स अगर आप करते हो तो एक बार ऐसे नोट्स बना के रखना। उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक भी रहती है आई गेस मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बट मैंने खुद से कभी बुक्स पढ़ी नहीं है एक्चुअली। मैंने बुक सिर्फ लक्ष्मीकांत के लिए ही पढ़ी है, क्योंकि मेरा ना मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने इसे सर से किया था, तो मैंने खुद से वो नोट्स पूरे लिख के रखे थे। तो उन्होंने हर एक शब्द बोला था वो मैंने लिख के रखा था। तो मेरे पास वो सारे ये थे कि उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है ना, मेन इम्पोर्टेंट ये रहता है कि इंडिया में कैसे ब्रिटिश आए, कैसे इस्टेब्लिश किए, उनकी क्या क्या पॉलिसीज रही, इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसीज, उन्होंने कौन से एक्ट्स बनाए, लाइक एक्ट ऑफ 1935 इज इम्पोर्टेंट, लाइक दैट, राइट। सो और हमारी इंडिया की नेशनल मूवमेंट कैसी रही और उन्होंने कैसे फ्रीडम फाइट करके ये हो गया फाइनली। सो दिस इज मॉडर्न इंडिया। सो उसके बेसिकली हर एक फेज रहता है, उस फेज के एक नोट्स रहने चाहिए। 100 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं बनाना, नहीं तो वो रिवाइज लास्ट टाइम पे नहीं हो सकते। मेक श्योर कि आप अगर क्विट इंडिया मूवमेंट है या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है तो उसका 1 पेज नोट्स आपके पास रहने चाहिए कि कौन कौन क्या रीजन थे, कॉजेस क्या थे, इम्पैक्ट क्या हुआ, इवेंट्स क्या हुआ, एंड हु आर द पीपल इन्वॉल्व इनटू इट एंड विच आर द लोकेशंस। 1 पेज, fine, clear it. Don't get into much essay of 10 पेज serial disobedience movement क्या है। So finish that। and ये है कि modern history is a very good topic। economics, polity and modern history ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जब प्रीलिम्स में तुम्हें शॉर्ट आंसर लिख सकते हो, आप क्वेश्चन MCQ के आंसर दे सकते हो, एंड यू कैन गेट अ गुड रिटर्न, you can score the marks in that subjects reliably. So you should always try to score upon these subjects. Make sure that you have a good command. Then आता है physical geography। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में एवरीथिंग आता है, लैंडफॉर्म्स क्या है, अर्थक्वेक क्यों होता है, ये ऑल दिस थिंग्स कम्स, रॉक्स एंड ऑल दैट थिंग्स कम्स। सो ये मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के है अनअकैडमी से, तो उनसे किया था। आई विल बी शेयरिंग दिस PPT, सो यू डोंट वरी। सो उनसे वो फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट नहीं आए ना तो ये कंसेप्ट पे, फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट पे ही
बाकी सारा एनवायरनमेंट भी डिपेंडेंट है, काफी सारा एनवायरनमेंट, काफी सारा डिजास्टर मैनेजमेंट ये इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, इस फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट पे, यू नो अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, यू नो डिजास्टर क्यों हो रहा है, बिकॉज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है. सो इट क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड देन ओशन करंट्स के क्या ओशन करंट्स होते हैं. ओशन करंट्स मतलब कि चलो पैसिफिक ओशन में कैसे कहाँ से पानी कहाँ पे बह रहा है, कहाँ पे कैसे गोल गोल घूम रहा है, कहाँ पे घूम रहा है, आर्कटिक में कैसे घूम रहा है, या फिर हमारे इंडियन ओशन में कैसे घूम रहा है. तो ये सब क्लाइमेट चेंज के को इम्पैक्ट करता है. ये क्लाइमेट चेंज इसको इम्पैक्ट करता है. ये सब ऐसे इंटरलिंकेजेस पूरे इकोसिस्टम में है. तो वो अंडरस्टैंड के लिए फिजिकल ज्योग्राफी की बेसिक कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो बहुत अच्छे से कर लेना, डायग्राम्स निकाल के रखना, उसका कंसेप्ट लिख के रखना. चाहिए तो एक्स्ट्रा वीडियो देख लो, बट एक पर्सन से अगर आप कोर्स ले लो तो वो समझ जाता है. बेसिकली आप समझ जाओ. वो उसका समझने के बाद ना हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि फिजिकल ज्योग्राफी में एज सच तो इतने ज्यादा अभी क्वेश्चन नहीं पूछते कि रॉक्स क्या है. ये बहुत एकाध क्वेश्चन होता है, बहुत एक आध क्वेश्चन होता है कि यू नो दे आस्क यू अबाउट रॉक्स क्या हुए. और मोस्टली ज्योग्राफी इज नाउअडेज इन लेटेस्ट पैटर्न ऑफ लास्ट 5 years इज टारगेटेड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, कि वो ज्योग्राफी हमें अभी कैसे मैटर कर रही है. लेट्स से सी लेवल राइज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल जो है ना इंक्रीज हो रहा है सब जगह पे. सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वाटर एक्सपांड होता है एंड मेल्ट भी हो रहा है, आइस मेल्ट भी हो रहा है, आर्कटिक अंटार्कटिक का मेल्ट भी हो रहा है. तो वाटर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर से इंक्रीज भी हो रहा है वाटर एक्सपांड. सो वाटर लेवल इंक्रीज, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है. तो उसकी क्या प्रॉब्लम है. तो आई थिंक लास्ट मेंस में भी वही क्वेश्चन पूछा था कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं. तो इम्पैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज है ना, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में टुवालू एंड स्मॉल स्मॉल आइलैंड कंट्रीज होते हैं, तो वो पूरे सबमर्ज हो रहे हैं, पर पूरी की पूरी कंट्री डूब रही है. यू नो पूरी की पूरी कंट्री ओशन के ऊपर डूब रही है. इट्स गेटिंग वाइप्ड आउट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑफ द मैप, राइट. एंड इंडोनेशिया में भी अभी कैपिटल चेंज कर लिया, उसकी भी काफी सारे कोस्टल रीजन्स पूरा ये पानी आ रहा है. सो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग हैपनिंग नाउ एंड दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन फ्यूचर, कि हमें हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ रहा है. और वो समझना यूपीएससी के लिए और एनी सिविल सर्विस के लिए और एनी पॉलिटिकल पर्सन, एनी यू नो पर्सन हु इज इनटू द डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हमारा एग्जिस्टेंस एज अ ह्यूमन बीइंग इज बीइंग इन डेंजर एंड वी नीड टू अरेस्ट ऑल दैट. एंड दैट्स द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरमेंट, हाउ टू बी विथ आवर एनवायरमेंट. And to understand the environment, we need to understand the basic concept of physical geography, that how geography works. यहाँ दुनिया में कहाँ पे पानी कैसे है, क्या कर रहा है, यू नो इंटरलिंकेजेस ऑफ वेव. कुछ क्योंकि कहीं पे कुछ पैसिफिक ओशन में हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन ओशन में भी होता है. इंडियन ओशन में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें रेन मिलता है नहीं मिलता है. रेन नहीं मिलता तो हमारी फार्मिंग के अफेक्ट होती है, फिर मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाता है और फिर कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हो जाती है, इकोनॉमी पूरी डूब जाती है, फार्मर को. सो ऑल दिस इज वेरी इंटरलिंकेज. जब वो इंटरलिंकेजेस इफेक्ट आपको आ गए ना तो आपको पता है कि आपको यूपीएससी समझ आ गई. जब तक आपको वो इंटरलिंकेजेस नहीं आते तब तक देन यू आर जस्ट इनटू प्रिलिमिनरी स्टेज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. सो दिस इज दैट. ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड ही थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी होता है कि कैसे ह्यूमन की लाइफ अफेक्ट होती है, कोई फिशरमैन हो और ऑल दैट थिंग्स, ट्राइब, यू नो सम nomadic tribes, so all that. So again then main is mapping is very interesting subject. अगर आप इसमें नहीं हो ना तब भी आप छुट्टी में क्या कर लेना, ये मैपिंग का ये टारगेट यूपीएससी सर इसका सुदर्शन सर का एक लेक्चर होता है यूट्यूब पे. ओके 3-4 घंटे का होता है, कभी कभी छोटा बड़ा होता है. तो बस वही एक ही लेक्चर वो जो कंपाइल का होता है 4 घंटे का, अदरवाइज इंडिविजुअली उनके 1 आवर के तो टोटली 8 आवर्स का फाइट. ये जब छुट्टियों में ऐसे ही देख लेना, समर वेकेशन में कभी भी जस्ट ऐसे ही टाइम पास के लिए, बाकी हम मूवीज देखते हैं ना वैसे देख लेना. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैपिंग वो क्या है ना कि अभी क्या हो रहा है दुनिया में, उसी की बेसिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं.
मैप में कि चलो ईरान में वॉर हो रहा है तो ईरान के बॉर्डर कंट्रीज क्या है, उसमें कौन सा गल्फ कौन सा स्टेट जाता है, कौन सी वाटर बॉडीज जाती है, कहाँ पे है, एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल स्मॉल, कौन सी ऑयल का कौन सा पोर्ट है या कौन सी फैक्ट्री है या कौन सा रिवर है, कौन सा माउंटेन था, तो एवरीथिंग दे विल आस्क. So anything they may ask. And ये मैपिंग के जो ये सर का लेक्चर है ना यूट्यूब में, तो उसमें वो सारी चीजें कवर करते हैं कि अफ्रीका में कहाँ पे कोबाल्ट की प्रॉब्लम, कोबाल्ट के रिजर्व्स है, एंड सूडान में क्यों वॉर हो रहा है. तो ही गिव्स a little brief, 2 minutes and 3 minutes, I mean small brief also, कि what is the problem exactly. He will not tell कि सूडान में यहाँ पे ये जगह है, बट ही विल टेल सूडान में ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, कि इस जगह पे वॉर हो रहा है, इन दो कंट्रीज में वॉर हो रहा है, यहाँ पे कुछ ये वाले एथनिक ग्रुप्स है, यहाँ पे ये वाले एथनिक ग्रुप्स है, वो फाइटिंग कर रहे हैं, इसीलिए वॉर हो रहा है. तो इसीलिए हमें वो रिलेवेंट हो जाते हैं कि व्हाई वी आर नोइंग दैट पर्टिकुलर प्लेस. अदरवाइज ऐसे ही बोल दिया कि चलो यूक्रेन में क्यू कलर नाम की प्लेस है, तो ऐसे करके तो मैं रट नहीं सकती. बट वहां पे तो मुझे सिग्निफिकेंस पता चला कि ये यहाँ पे वो ऐसा सा हो रहा है यहाँ पे, तो फिर चीज रहती है, वही यूपीएससी को चाहिए होता है. तो हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चंस मैप के ऊपर रहते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस. एंड इट आल्सो कीप्स व्हेन यू डू दिस कोर्स ऑफ लेक्चर, इट कीप्स यू अपडेटेड विद इंटरनेशनल इवेंट्स व्हाट आर हैपनिंग. सो दिस इज अनदर थिंग. देन एनवायरमेंट में आप बेसिक ये कर लो, कंसेप्ट एग्रीमेंट. एनवायरमेंटल की मूवमेंट 1970 से कैसे स्टार्ट हुई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारे कुछ एग्रीमेंट्स हुए. 1992 अर्थ समिट हुआ, अर्थ समिट में हमने क्लाइमेट चेंज के प्रति, बायोडाइवर्सिटी के प्रति एंड डिफरेंट के प्रति एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट शुरू हो गए. That is the time when all the world woke up and said that no, all we together will come together, irrespective of you are who you are, differences. हम सब बाजू में रख के हम एक साथ आएंगे और एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे. क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स 1980s में आ गए थे, उसके ऊपर 1990s से के बाद से बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए. और फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बाद हर एक कंट्री की एक जिम्मेदारी होती है, कि जैसे इंडिया की जिम्मेदारी है, इंडिया ने कमिट किया है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030. इंडिया ने कमिट किया है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करें. तो फिर देन यू हैव टू गो इनटू डिटेल कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया में क्या क्या कंपोजिशन है. सोलर में चलो अभी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी अभी के पीरियड में 250 है गेस, and 250 gigawatt and 130 is the solar component. How much is the wind component, how much is the other energy. Even अगर हमें सोलर बनाना है तो हमें उसके लिए चैलेंजेस क्या है, हमारे पास फोटोवोल्टेइक नहीं है, या सेमीकंडक्टर्स नहीं है, या विंड एनर्जी के लिए नहीं है. तो अगर हम बनाना चाहते हैं तो कहाँ पे बना सकते हैं, कहाँ पे राजस्थान में ज्यादा है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ज्यादा है, कहाँ पे है, कहाँ पे हम बना सकते हैं. सो इसका ये सब इकोसिस्टम आ जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, कहाँ पोटेंशियल, कहाँ पे कैसे बना सकते हैं, ऑल दैट थिंग्स कम्स इनटू ऑल दिस पिक्चर. बट ये मैंने इनका ही, सुदर्शन सर का ही किया था एनवायरमेंट का लेक्चर एक्चुअली अनअकैडमी से. तो वो ना बेसिक 2-3 वीक्स का कोर्स रहता है, उसमें वो बेसिक अग्रीमेंट सब पता चल जाता है. एंड उसमें ऑल्सो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक कोई भी इंटर कर रहा हो ना यूपीएससी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो फिर उसको यूपीएससी नहीं पता चलती. ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी टॉक्स यही है कि क्लाइमेट चेंज, एक्सेप्ट अदर, अब ये वॉर आया इसलिए, बट नहीं तो फिर क्लाइमेट चेंज एंड नेट जीरो इज द बिगेस्ट टर्मिनोलॉजी फॉर टुडेज वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल प्रोफेशन, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी. सो इसीलिए वो एग्रीमेंट्स पता होने चाहिए. उसके बाद न्यूज में जो आता है आप अपडेट करो अपने नोट्स को. स्पेसिस रिलेटेड सारे यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं स्पेसिस रिलेटेड, इसमें मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं होता है. तो बट प्रीलिम्स में वो 4-5 क्वेश्चन पूछेंगी कि ये स्पेसिस कहाँ मिलती है, वो स्पेसिस कहाँ मिलती है, ये वेटलैंड कहाँ है, ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, ऑल दैट थिंग, काजीरंगा में क्या है, इसमें क्या है, कोई स्पेसिस होगी पैसिफिक ओशन में, वो भी पूछ लेंगे. तो ये सब आपको बेसिक मैपिंग होनी चाहिए. ये सुदर्शन सर का जो एनवायरमेंट कोर्स है इसमें होता है, अगर कोई और आपको पता है तो भी कर सकते हो, बट ये मैंने किया था. तो उसमें वो सब मैपिंग करवा के दे देते हैं कि इंडिया में कौन कौन से, नॉर्थ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तो कौन से फॉरेस्ट है, कहाँ पे क्या है, कौन सा एनिमल है, कौन सा ये है. तो ये इंपॉर्टेंट रहता है. प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछता है. मेंस में क्या पूछते हैं, इससे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था कि वेटलैंड्स इंडिया में कहाँ पे है.
रामसर वेटलैंड थे, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ये व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज अगेन इम्पोर्टेंट, वेटलैंड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज पानी की, वेटलैंड मतलब पानी की पॉन्ड्स काइंड ऑफ थिंग, पानी कहाँ पे इंडिया में पानी इज जरूरत है इंसान की एग्रीकल्चर के लिए, इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो ये इसलिए वो प्रेजेंट सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बैंगलोर में भी कुछ आई थिंक 1-2 साल पहले ड्रॉट हो गया था, पूरा पानी नहीं था, so there is a lot of issue in urban areas में, you don't have water sometimes because क्या कर रहे हैं, ponds वाइप, हम जैसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो ponds चले जा रहे हैं, तालाब जो थे पानी के ये थे सोर्सेस अभी वाइप्ड आउट हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये इसीलिए वो लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई बनाओ वेटलैंड बनाओ, पॉन्ड्स बनाओ, सो दैट पानी हम रखे अपने पास, हम ऐसा नहीं कि ड्रॉट हो जाए, ये जैसे अभी बैंगलोर में बड़े सिटीज में हो रहा है, यू नो, इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंट टाइम्स, सो ये एक है, एंड बाकी सारा फिर आप करंट अफेयर से कर लो। नाउ करंट अफेयर्स आई विल कम टू दैट पॉइंट, एंड ये करंट अफेयर्स है, इसके बाद ये सब करने के बाद आप एंशिएंट कर लो, ये एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री ये सब कर लेना, डोंट एंटर इनटू I'll just take 10 more minutes to wrap up all this. So ये पहले ये सारे ऊपर के 4 सब्जेक्ट आप कर लेना, 4-5 सब्जेक्ट, इसके बाद ही मेडिवल हिस्ट्री को टच करना, क्योंकि वो ना बहुत पुराना है, उसका अभी ज्यादा सीक्वेंस नहीं है, बट अभी वो आपके लिए जस्ट चेंज के लिए अच्छा हो जाता है, और उसके क्वेश्चंस भी कम रहते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं रहता, बेसिकली मेंस में 2 क्वेश्चन रहते हैं ऑन एन एवरेज, अभी लास्ट ईयर थोड़ा सा एक्सेप्शनल पैटर्न था, और सो आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, इसमें कहाँ पे प्रीलिम्स में कई बार मार्क क्वेश्चंस रहते हैं, 7-8 क्वेश्चंस ले लो अगर आप है एंशिएंट मिडिवल या आर्ट एंड कल्चर के, तो ये एक बात याद रखना, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसरिंग बहुत कम होती है, तो डोंट गो इनटू टू मच कि मुझे ये भी कवर करना है, वो भी कवर करना है, अरे ये बुक किसने लिखा था, कालान ने बिलान ने कौन सा बुक लिखा था 2000 साल पहले, वो मुझे पता ही नहीं, कैसे मुझे नहीं पता, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, किस मेरे रिसोर्स में नहीं था, तो ये डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज बेसिक है, एक किसी इंसान से पढ़ लो, अपने नोट्स रख लो, उसमें से जो आ रहा है वो कर लो। इफ यू थिंक दैट कि आप 2000-3000 हिस्ट्री में से साल की हिस्ट्री में सारे चीज कवर पाएंगे, किस इंसान ने क्या किया था, तो वो कभी भी नहीं होने वाला, तो हमेशा वो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन डालेंगे तो कि जिसमें वो आपको पता है कि वो नहीं आएगा आपको, तो डोंट एंटर योर पुट योर एनर्जी इनटू ऑल दिस थिंग्स, और वो आपको नहीं आ रहा तो बहुत सारे लोगों को भी नहीं आ रहा होता है, so don't put your energy into this is subject where you cannot guarantee a return investment, you know, बट उसमें कुछ वेरी बेसिक चैप्टर्स है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, जैसे कि गुप्ता एरा था 5th सेंचुरी एडी में इंडिया में, गुप्ता एम्पायर था, या मगधास, आपको चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ऑल यू नो, तो गुप्तास में क्या है ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन रहता है, तो उनकी टर्मिनोलॉजी रहती है कि विशपति मीन्स द यू नो, आज के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे रहता है वैसे उनकी टर्मिनोलॉजी, विशपति हु हैंडल्स द डिस्ट्रिक्ट, हु मैनेजेस द डिस्ट्रिक्ट, सो वो टर्मिनोलॉजीज आपको जस्ट पता होनी चाहिए कि हर एम्पायर की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, तो वो क्योंकि वो उसमें वो देन ऑब्वियस क्वेश्चन है, वो तो सबको ही आते हैं, अगर आपने वो जो सबका कॉमन मटेरियल है वो अगर आपने मिस कर दिए तो फिर देन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन व्हिच इज टू बी डन एंड व्हाट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा व्हिच हैज टू बी लेफ्ट आउट, सो वो है कि क्रोनोलॉजी आप समझ लो, इंडिया के 3000 साल की क्या पहले है कि स्टोन एज स्टार्ट होता है, ब्रॉन्ज एज में हड़प्पा आता है, फिर आयन एज आता है, एंड उसमें क्रोनोलॉजी में डायनास्टी कैसे आती है, मगधा आता है, फिर सातवाहना आता है या वाटाकटा आता है, एंड देन यू हैव ऑल, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स व्हिच यू नो इट मे साउंड एलियन टू यू, बट अगर आप जाते हो तो एक ही 2-4 दिन में आपको समझ में आता है, इट्स वेरी इजी थिंग, एंड देन मेन इवेंट्स क्या रहे, एंड बेसिकली हर एक एम्पायर की लिख के रखना, बस एक स्मॉल पेज नोट रखना, बहुत हाफ पेज फॉर वन एम्पायर, कि बेसिकली उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनका कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम क्या था, वहां पे विशपति था या समथिंग था, उसकी पॉलिटी कैसी थी, ओके, मिलिट्री थी, नेवी थी, जैसे नेवी हमारे यहाँ यू नो दैट टाइम चोलास के यहाँ तमिलनाडु में थी, या मराठास के यहाँ नेवी थी, या कौन कौन के पास नेवी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सपोज आर्यभट्ट ने किया था या समथिंग, सो वो आपको पता होना चाहिए कि ये आर्यभट्ट इसी टाइम पीरियड में इसी एम्पायर में
के गया था और इसी ये डिस्कवरी की थी। एंड इकोनॉमी बेसिकली कैसे थी, एग्रीकल्चरल थी, ट्रेड इकोनॉमी थी, ये था। तो सोसाइटी की पोजीशन की विमेन वेयर सती प्रथा था, विमेन वेयर लिबरेटेड, विमेन वेयर लाइक चंद्रगुप्त मौर्य अशोका टाइम जाओगे तो विमेन वेयर वेरी लिबरल, लाइक विमेन वेयर एम्प्लॉयड इनटू द गवर्नमेंट। बट अगर गुप्ता एरा में आए तो सती सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। तो ये सोसाइटी वगैरह क्या है, तो ये बेसिकली एक हाफ पेज नोट ऑन एवरी डायनेसिटी शुड बी देयर एंड अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ एवरी एम्पायर। एंड देन यू कम द आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया। इसमें ये ना ये मैंने जहाँ पे लिखा है ना, ये मैं पीपीटी दे दूंगी, ये केव्स ले लेना, केव्स पे बस 1 पेज नोट तैयार कर लो, कहाँ पे कौन सी केव है, बस खत्म। स्तूपास कहाँ पे कौन सी है, खत्म। टेम्पल्स कहाँ पे कौन सी है, क्या स्ट्रक्चर रहा, क्या स्टाइल रहा, बस खत्म। सो इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स, लिटरेचर में बहुत ब्रॉड आ जाता है। देन पेंटिंग्स, डांस एंड देन इंडियन फिलोसफी में एक और चीजें हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत अच्छे से करना पड़ता है, वो हमेशा अच्छे से करके जाना, क्योंकि उसमें से काफी बार क्वेश्चन सब जगह आता है प्रीलिम्स और मेंस में। और भक्ति मूवमेंट्स जो है, जो 16th सेंचुरी मेडिवल एरिया में इंडिया में हुए थे, लाइक गुरु नानक से लेके कबीर से लेके यहाँ पे नीचे अलवार सन्नाइनास है। सो ऐसे ये बहुत ये करके जाना। दिस आर द थिंग्स विच आर हेल्दी थिंग्स विच आर टू बी नोन, यू कैन यूज इट एनीवेयर क्रॉस चैप्टर्स आल्सो, लाइक एसे, एथिक्स, ऑल दिस में, और ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये हो गया आर्ट एंड कल्चर। तो इसी को टेम्पलेट बना के उसमें 1 पेज नोट निकाल के खत्म कर दो, डोंट एंटर मच इनटू दैट। देन आता है सोसाइटी। ये अभी ये जो मैंने बोला, ये सोसाइटी है ना, ये थिंग्स दीज आर नॉट देयर इन मेनली प्रीलिम्स। ओके, प्रीलिम्स में ये सब चीजें नहीं है, ये मेन में ज्यादा ऐड हो जाती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कैसे ये है, लाइक वल्नरेबल ग्रुप्स इनका सोसाइटी में होते हैं विमेन के प्रति, पॉश एक्ट है, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, सो उसके प्रति, या फॉर विमेन के लिए सेफ्टी लॉज फॉर एट वर्क प्लेस। देन उनके लिए कोई स्कीम्स है क्या, वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। उनकी इश्यूज क्या है विमेन के, उनको इक्वल पेमेंट मिल रहा है क्या, उनको प्रमोशन लीडरशिप मिल रहा है क्या एम्प्लॉयमेंट में, अगर कोई कंपनीज में हाउ मेनी विमेन आर देयर। सो इंडिया में आप देखोगे तो सीएक्सओ पोजीशन के लिए 20% विमेन आर देयर, लाइक सो उससे भी कम ही है, मतलब वी आर नॉट, एंड जेंडर पैरिटी इज नॉट देयर। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ओल्ड एज के इश्यूज है, चाइल्ड के है, फिजिकली डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हर एक वल्नरेबल सेक्शन के सोसाइटी में इश्यूज बेसिकली क्या है। रीजनल भी इम्बैलेंस रहता है, एंड इसमें ऑफ कोर्स आई हैव टू ऐड दैट रिलीजियस इश्यूज, regional issues, and this all issues are there. I'll just add a few of them. So वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सोसाइटी का होलिस्टिक वे, ये मेंस के लिए ज्यादा आता है, इसमें नहीं आता, प्रीलिम्स में ज्यादा डायरेक्टली नहीं आता। प्रीलिम्स में कैसे आता है मैं बताती हूँ, बट इसके एंड अर्बनाइजेशन की इश्यूज, मॉडर्नाइजेशन की इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन, ऑल दिस इज कवर्ड इनटू सोसाइटी चैप्टर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हमारी मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी जॉइंट फैमिलीज टूट रही है, हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। तो इसके ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में मेंस में ऐसे ही आएंगे। देयर इज अ क्वेश्चन डायरेक्टली कि चेंजिंग फैमिली इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो हमें क्या है, वॉट एवर इट इज, न्यूक्लियर है, सिंगल पेरेंटिंग है, वॉट एवर इट इज। सो ऑल दिस वी हैव टू मेंशन आउट। कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। यू डोंट हैव टू राइट एसेज इन यूपीएससी मेंस एग्जाम, यू नीड टू राइट ओनली द पॉइंटर, बुलेट पॉइंट में आप लिखो चेंजिंग फैमिली इंस्टीट्यूशन में अंडर सिंगल पेरेंट फैमिली, फिनिश। यू डोंट हैव टू गिव फुल लाइन एक्सप्लेनेशन, फिनिश। नेक्स्ट पॉइंट, whatever it is, okay, nuclear families, next point, okay. So all these things are there. Social issues, social media, especially AI related बहुत issues आ रहे हैं, क्योंकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सोसाइटी में क्या हो रहा है ना, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जा रही है, बायसेस आ रहे हैं, क्योंकि AI डाटा जैसे एल्गोरिथम ट्रेन करता है, वो जिस डाटा पे ट्रेन कर रहा है वो डाटा अगर क्लीन नहीं हो, वो डाटा इटसेल्फ पॉइजन्ड हो, तो उसका आउटकम भी वैसे पॉइजन्ड आउटकम या बायस्ड आउटकम आता है। So, वो वाज इम्पोर्टेंट है कि एआई को बहुत केयरफुली हमें एक्सेप्ट करें। तो उसमें क्या चैलेंजेस है, बेसिकली एआई के ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो मोर देन मेजर्स दे विल आस्क द चैलेंजेस इटसेल्फ, व्हाट इज द चैलेंजेस थ्रोन बाय एआई। सो इकोनॉमी में चैलेंजेस है, जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, सोसाइटी में चैलेंजेस है कि हेट क्राइम्स या एल्गोरिथमिक बायस है,
So all these things will be there. So these are the things, everything is related to currents. ये एंशियंट और मेडाइवल का 2-3 टॉपिक छोड़ के ना आपको ऐसा यूपीएससी में कुछ भी नहीं दिखेगा कि जो आपको लग रहा है कि आज मुझे यूजफुल नहीं है या आज मेरे रिलेवेंट नहीं है. इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज बॉदरिंग द वर्ल्ड टुडे and how as an administrator I will be helping the world today for the today's problem. So it is very important, very interesting, very exciting subject studies. So society and last में आते हैं internal security and disaster management. उसमें इंडिया के सारे डिफेंस, especially nowadays India has giving very much weightage for the defense pertaining to our conditions in the border areas, you know, our neighbors and this is there. So उसमें border के लिए air defense technologies, अभी आपने देखा ईरान का वॉर ना फिजिकल ग्राउंड में हुआ ही नहीं, ना इनकी आर्मी यहाँ पे आई, इनकी आर्मी वहां पे गई. सो पूरा वॉर हुआ मिसाइल से ईरान का, राइट. वो तो पूरा मतलब दिस इज वॉर चेंज द एंटायर सिनेरियो. जैसे हमने कारगिल का वॉर किया था, हमारी आर्मी वहां पे गई या वहां की आर्मी आई, वो तो अभी सिचुएशन ही नहीं रहे, अभी सिचुएशन हो गई पूरा मिसाइल में. तो एवरी मिसाइल नाउ कमिंग, यू शुड नो कि ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइल है. शायद ड्रोन है उनके पास, शायद नाम का ड्रोन है. तो दैट इज वेरी, अभी यूपीएससी में प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये ड्रोन किस कंट्री का है. और ये यू नो इनके पास यूएई का जैसे इजराइल के पास वो हेरॉन नाम की है, बराक नाम की मिसाइल है. और तो दे विल गिव द डिफरेंट हियर कि बराक किसका है, यू नो दे विल मैच बराक किसी और, मतलब दे विल मैच द पेस काइंड ऑफ थिंग. तो यू नीड टू नो कि बराक इज द मिसाइल बाय इजराइल, शायद इज द ड्रोन ऑफ ईरान, यू नो रशिया के कौन से इक्विपमेंट है, फ्रांस के कौन से मिसाइल्स है. सो ऑल प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एयर में, ओशन में हम सबमराइन्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल दैट थिंग्स. स्पेस में क्या कर रहे हैं, आर वी डूइंग सम स्पेस वेपन्स और वी आर डिफेंडिंग दिस इंडिया फ्रॉम द वेपन्स कमिंग फ्रॉम स्पेस, बिकॉज चाइना स्पेस वेपन्स बना रहे हैं. तो हमारे लिए इंडिया लिए बहुत टेंशन की जाती है कि स्पेस से चाइना से और छोड़ा, चाइना ने स्पेस से कुछ छोड़ा, तो इसलिए एंटी सैटेलाइट वेपन्स एंड ऑल. तो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत आपके लिए एज एन इंजीनियरिंग और एज ए टेक्नोलॉजी पर्सन इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो टू नो. एंड बहुत खुशी होती है कि हमें ये पता है और हमारा इंडिया भी कर रहा है और हमें ये करना चाहिए. सो ये तो इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स इसके अराउंड हो रहे हैं. अग्निकुल स्टार्टअप है, या यू नो दे आर मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन. सो ये सब स्टार्टअप्स में बहुत सारा इसमें मिला हुआ है, आए हुए इसमें. तो इसलिए भी आपको ये पता आपको इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन इन द लाइफ कि आपको अगर करना है टेक्निकली तो आप क्या करना चाहिए, कैसे थ्रेट्स है और हाउ टू व्हाट यू कैन बिल्ड फॉर इंडिया. सो ये है. देन बाकी जो इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है वो ये ट्रेडिशनल इश्यूज है, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर मैनेजमेंट. एंड इसमें कुछ करंट अफेयर्स में होता रहता है. ये बेसिक जो इश्यूज है वो आप डायरेक्ट वेबसाइट से पढ़ लेना. एंड करंट अफेयर में कुछ हो गया तो वो ऐड कर लेना, क्योंकि जैसे नक्सल फ्री इंडिया अभी हमने गोल ये किया हुआ है. बहुत सारे ऑलमोस्ट नक्सलिज्म अभी खत्म होने को वो आ रहा है, लाइक सो वो आपको प्रोग्रेस पता होना चाहिए कि ओनली वो 12 डिस्ट्रिक्ट्स आर ओनली नक्सली अफेक्टेड एरियाज. अभी इतना मतलब कम हो गया है. सो दैट यू नीड टू नो. सो वो एक जगह पे आप जस्ट नक्सलिज्म यूपीसी डालोगे ना, एक वेबसाइट पे सब आ जाते हैं. इट्स जस्ट अ हाफ एन आवर वर्क, finish. So organized crime होता है, terrorism and all that, how is it happening. And then disaster management में cyclones आ गए, सुनामी आ गए, landslides आता है, floods आता है, urban issues आते हैं, heat island आते हैं, urban droughts आते हैं, urban floods आते हैं. तो ये सब all emerging climate issues है जो disaster आता है अचानक से, और हमें कुछ pandemic आता है, covid आता है, anything, how we are going to deal with it, what are the already government policies in place, laws in place, bodies in place. There's a national disaster management authority is there. So what is their powers and earthquake आ रहा है तो कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, हिमालय के रीजन में, वो फुट हिल्स में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हिमालय वहां पे है. सो यू नीड टू नो कि अगर कहाँ पे आने वाला है, आ सकता है, और हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे लाइफ के लिए, और हम क्या क्या तैयारी उसके लिए कर रहे हैं.
कि हमें साइक्लोन से हम अफेक्ट ना हो, या फिर फ्लड से हम अफेक्ट ना हो, या फ्लड को रोक आए ही ना फ्लड्स, ऐसे हम क्या तैयारी पहले करें. सो ये सब वेरी जनरल अभी के लाइफ के रिलेटेड, जैसे मुंबई फ्लड्स है, दिल्ली फ्लड्स आए थे, अभी जो यमुना की फ्लड्स आए थे, तो हमें पता है कि हमें वाटर बॉडीज को बहने देना है, यू नो वी शुड नॉट बिल्ड अ बिल्डिंग इनटू न्यू रिवर साइड एंड लेट कंजर्व ऐसे. तो ये सब चीजें हैं जो बहुत ही रिलेवेंट है करंट. सो मेरा अभी तो ये पॉइंटर्स हो गया. आई विल नॉट एंटर मच इनटू द सब्जेक्ट ऑफ दिस. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. व्हाट लास्ट पॉइंट आई वांट टू कवर इज, on top of all this, when you cover this basics, now here I have written science and environment में, और सब जगह में एक मैगजीन आती है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन. विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आप जस्ट छुट्टियों में ना कभी भी देख लेना, एक बार जस्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट मार लेना. फ्री होती है विजन आईएएस की वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड कर लेना. 100 पेजेस की होती है, उसको प्रिंट आउट करके, या फिर वॉट एवर यू, मैं तो प्रिंट आउट करके रखती हूँ. तो मेरे तो बहुत हाईलाइटिंग भी रहते हैं. लेट्स से आई तो ये ऐसा मैगजीन रहता है, तो मैं पूरा ऐसे हाईलाइट करके रखती हूँ हमेशा. सो आई नो कि इसमें ना सारे इश्यूज करंट अफेयर्स के कवर हो जाते हैं. अभी ईरान वॉर आ रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में इसमें सारा कवर हो जाएगी, कौन से टेक्नोलॉजीज यूज हुए, कौन से ये हो गए. अभी अगर कहीं पे फ्लड आ रहा है, समृद्धि आ रहा है, तो वो सारा चीजें कवर हो जाती है. तो उसमें आपको एक जगह पे हर चीज का प्रॉपर डाटा मिल जाता है, प्रॉपर डाटा, ये स्टैटिस्टिक्स नंबर मिल जाते हैं, लॉज मिल जाते हैं, स्कीम्स मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है. पॉइंट टू पॉइंट रहता है, बहुत ऐसे टाइप नहीं रहता, पॉइंट टू पॉइंट रहता है. सो वो आप ना सीरियसली पढ़ लेना. मुझे लगता है कि मेरे यूपीएससी के 4 इयर्स का जो प्रीलिम्स का सक्सेस रहा है, वो पूरा का पूरा मैं विजन आईएएस के मैगजीन को दूंगी, पूरा का पूरा, बिकॉज दैट इज लाइक आई रिलीजियसली फॉलोड दैट मैगजीन एवरी मंथ. सो आई वाज नोइंग एवरी क्वेश्चन. लाइक अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी में. एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि nature I'll just read the question. Which organization has enacted nature restoration law to tackle climate change? Nature restoration law. अभी ये एक लाइनर क्वेश्चन, इसमें कोई दिमाग नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ ये नहीं. नेचर रिस्टोरेशन लॉ है. वो किसने लाया था? वो इस मैगजीन में रहता है कि ये भाई ये किसी सितंबर में आया होगा, कहीं में आया होगा. तो उस मैगजीन में जैसे ही लॉ वो यूरोप में आया, वो इसमें लिखा हुआ था, वन लाइन में लिखा हुआ था कि यूरोप में ये आया. तो बस वो आंसर दे दो. एक डायरेक्ट आंसर था यूरोपियन यूनियन, फिनिश. सो आपको 2 मार्क्स ऐसे ही मिल गए. सो इट्स वेरी मच, you know, at least 10 questions directly come from the current affairs as it is. You don't even have to use your brain. So वो important है. और उसके बाद अगर additional resources चाहिए, तो only IAS के prelim booster वीडियो होते हैं YouTube पे फ्री में, editorial discussion फ्री में होते हैं. तो वो सुनने के लिए आप, अगर आप ऐसे ही आप टाइम पास करना चाहते हो, वीकेंड के लिए सुन सकते हो. ये बहुत अच्छे होते हैं. एंड बोथ द पीपल आर वेरी गुड. सुमित सर लेते हैं उनका. तो ये करंट अफेयर्स इज द गॉड अल्टीमेटली. अगर आपको कोई एक इंसान से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट और द पर्सन हु इज सक्सेडिंग इन प्रीलिम्स इज डिफरेंशिएटेड ओनली बिकॉज देयर एज ऑन देयर कमांड ऑन करंट अफेयर्स. एंड द कमांड ऑफ विजन आईएएस इज द रिलायबल सोर्स. सब टॉपर यूज करते हैं, बट सब टॉपर्स क्या करते हैं, ईयर एंड में आता है, उसको पीटी 365 बोलते हैं. पीटी 365 जो पूरे ईयर का कंपाइलेशन आता है, तो वो लोग वो करते हैं. मैंने किसी भी टॉपर से कभी नहीं सुना कि मतलब ऑलमोस्ट 90% टॉपर ने वो किया ही होता है. किसी भी इंसान ने ये छोड़ के यूपीएससी पास नहीं की होती, लाइक 90% पीपल डू. बट मैं ऐसा करती थी कि मैं मंथली करती थी, सो दैट मुझे लास्ट मोमेंट पे पूरा ऐसा बर्डन नहीं रहे. मैं कंप्लीट कर पाऊँ सारी चीजें टाइम पे. लास्ट मोमेंट पे मैं कहूँ कि मैं अगर पूरे 1 साल का 10 सब्जेक्ट का पढ़ूँ 1 महीने में, तो मुझसे नहीं हो पाता था. तो आई वॉज लाइक रिलीजियसली एवरी मंथ अपना टाइम टू टाइम फॉलो करो. सो दिस इज ऑल द थिंग्स. आई थिंक यूपीएससी रिलेटेड मैंने टेक्निकली तो प्रिपरेशन वाइज सारा कवर कर दिए. So maybe anybody can take over. Manaram can take over anything he wants to add. अंशिका, अब जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक बार उनको हैंड आउट कर दीजिए. कोई भी क्वेश्चन पूछे प्लीज.
now the stage is open for the open Q&A. Yep. Is it Shivanjali? Hello. Can you hear Yeah. me? Yeah. Good afternoon. So I believe you had a similar background as mine, because I'm also had a undergraduate degree in computer science, and I do have an MBA from BITS Pilani. So I wanted to understand about, like, in terms of two questions. The first question was regarding optionals. The first thing is I was more inclined towards anthro in terms of my optional. And the second thing was, like, is it a wise decision to go with that? And the second question was regarding more on the interview part, like what type of interview questions do you expect from a computer science undergraduate, or in terms of the structure of how your preparation should be with an MBA as well as computer science undergraduate. Thanks. Are you appearing for services? Are you going for any interview? Not this year. I had given way back first attempt. I had actually qualified prelims in 2017. So, but yeah, I have 2 attempts left as per my category as well as my chances. So yeah, so maybe I Okay, will okay. apply next year. So you don't worry much about the interviews as of now. वो उसमें आप मत पढ़ो क्योंकि वो बहुत बात की स्टेज है. और अगर वो आता है ना, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर आपने कुछ कुछ इंटरव्यू में बोल भी दिए ना कि सर मैं आई हैव नाउ लेफ्ट अवे दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर वॉट एवर यूजी मैंने किया था, अभी मैं किसी दूसरे बैकग्राउंड चीज में हूँ और मैं पिछले 4-5 साल में इसी में हूँ, तो मेरा ये है. तो ये इंटरव्यू आप डायरेक्ट भी बोल देते ना, तब भी चल जाता है. तो उसमें ये भी नहीं होता. एंड अगर आपको करना भी है कंप्यूटर साइंस का, तो उसका एक स्टैंडर्ड मटेरियल भी रहता है हर कोचिंग क्लासेस में, हर आपकी जो जिसमें यूजी रही हो, तो उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसके क्या आंसर्स है, वो कोचिंग क्लासेस फ्लोट कर देते हैं. तो वो डायरेक्टली आप वो पढ़ के तैयार ऑफकोर्स पढ़ के रखना ही है. बट इन केस यू आर अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑन इन द इंटरव्यू, यू कैन डायरेक्टली से दैट सर आई कैन नॉट, आई डोंट रिमेंबर दैट नाउ, आई हैव टू कैच अप और स्टडी, और एंड दैट इज ऑल फाइन. यूपीएससी में 20 क्वेश्चन, नियरली 15 से 20 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. उसमें से करीब 7-8 आंसर क्वेश्चन को आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि सर अभी मुझे उसके लिए स्टडी करना है. बट 8-10 आंसर आप अच्छे से देना होता है, क्वालिटेटिवली देना होता है. So that is fine. You were there. Then coming back to your optional question. So I have no answer for your optional answer, because my optional was PSR and I can only answer on that particular subject. I have no understanding of anthro. But generally ये देखा गया है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जैसे कंप्यूटर में, हमारा सब्जेक्ट ऑप्शनल यूपीएससी की जो ऑप्शनल लिस्ट सब्जेक्ट्स है उनसे कोइंसाइड नहीं करता है, तो हमें हमारा पूरा सब्जेक्ट ही चेंज करना पड़ता है, राइट. तो हम अगर न्यू सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं, तो उसमें से जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, उसमें से पॉलिटिकल साइंस एक है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, देन है सोशियोलॉजी, एंथ्रो. दीज आर ऑल सब्जेक्ट्स विच आर स्कोरिंग एंड easy for is not easy, it's of course difficult and comprehensive, but at least manageable by people like us who are not from that background and have to take up a new subject. So that is there. And particularly अगर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको पूछना है, तो आप बेटर है कि उस सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज से ही पूछ लो. दैट इज द आंसर. धन्यवाद. Yes, anybody else who want to ask question, the floor is open. They can like turn on their mic and ask the question. Hello, ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. As you were said that if you were said that it is better to start in the last time of graduation, so it will be somewhat useful for you guys. So, like, if we start too early in the first or second year itself, I'm in the master student. So, if I start from the masters now itself, so what's your opinion on this one? Like, इट्स गुड टू स्टार्ट विथ मास्टर्स. उसमें कोई ये नहीं कि सेकेंड ईयर में आप स्टार्ट कर दो. एंड फर्स्ट से कि आप अपना कौन सा जो ऑप्शनल है ना, वो समझना स्टार्ट कर दो.
कि गो थ्रू द डिफरेंट ऑप्शनल्स, ओरिएंटेशंस रहते हैं हर एक के. तो यू नो लाइक शुभ्रा मैम का अगर पीएस है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के लिए शी इज गुड टीचर. सो उसमें उनका एक ओरिएंटेशन रहेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट सब्जेक्ट इज अबाउट एंड वेदर आई विल बी इंटरेस्टेड इन. सो एंड वेदर आई कैन स्कोर दैट सब्जेक्ट इन दैट सब्जेक्ट. तो ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है. चूजिंग दैट ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो एक है. और आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकते हो. मतलब यू कैन डायरेक्टली द वे फ्लो आई हैव एक्सप्लेन, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स. यू कैन डायरेक्टली आई हैव जो मैंने चार्ट में लिखा है ना, दैट इज द ऑर्डर ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक इट्स मेरिटली टेबल. दैट इज द ऑर्डर. यू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, यू कवर, एंड पैरेलली यू स्टार्ट विद योर ऑप्शनल. ऑप्शनल भी आपका पैरेलली इंपॉर्टेंट है. So you start. You better don't wait. Now it's done. You are already done for everything. You should start. And ma'am, one more question is that जैसा एक बोलना था कि आप जब प्रिपरेशन किया था तो जब कुछ मिस्टेक्स ऐसा कुछ रिपीट नहीं करने के लिए बच्चों जैसा ऐसा कुछ सजेशंस दे सकते हो क्या? मतलब ऐसा कुछ मिस्टेक्स. नहीं, मिस्टेक्स क्या होती है ना, पहले तो हमें रिसोर्स नहीं होता पर तो हम उसमें काफी दिन वेस्ट कर देते हैं. क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे मार्केट में हमें टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा. हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं. तो अभी मैंने रिसोर्स बता दिया ना, तो इससे आप 1 साल में पूरा का पूरा यूपीएससी प्रिपेयर तो कर लोगे. फिर रिप्रोड्यूस करना आंसर्स में, वो तो आपकी क्वालिटी के ऊपर है, आपके ब्रेन के ऊपर है. सो ये है कि उसमें ईयर्स बहुत वेस्ट हो गए मेरे टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इटसेल्फ. वो एक है. एंड मेंस का है ना, मेंस का प्रिपरेशन पैरेलली स्टार्ट होना चाहिए. तो मैंने ये किया होता, मैं पहले बहुत सारे वेज मैंने लाइक प्रीलिम क्लियर. सो आई फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स. आई डिडंट फोकस इनिशियली इन द मेंस चैप्टर. सो इट्स बेटर कि आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो, मैंने बोला ना जैसे आप कर रहे हो, तो उसी टाइम आप मेंस के भी क्वेश्चन देख लो और वो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखना भी स्टार्ट करो. सो मेंस की प्रिपरेशन पैरेलली गई. So when the time you crack the prelims, you should be able to jump into the mains. तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रीलिम्स तो मेरा क्लियर हो गया, जून में रिजल्ट आ जाता है और ये बट मैंने मेंस प्रिपेयर ही नहीं किया. यू नो दैट शुड नॉट बी देयर. तो वो मेंस के नोट्स तैयार रखना और बहुत कंसोलिडेटेड प्रिसाइज मैनर में, ऑप्टिमाइज्ड मैनर में. अगर पॉलिटी सब्जेक्ट है तो मैं अभी मतलब पावर पॉइंट में 100 स्लाइड्स में मेरा GS2 सब्जेक्ट कंप्लीट होना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने 1000 पेजेस का बुक मुझे वापस रीड करना है. तो हर सो ऑप्टिमाइज्ड वे में नोट्स पैरेलली तैयार करना और मेंस के प्रिपरेशन पैरेलली चालू रखना इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल मत सोचो, वो तो बहुत बाद की चीज है, वो अपने आप आ जाता है उस टाइम पे. बट मेन इज द प्रीलिम्स एंड मेंस, यू हैव टू गो टुगेदर. Okay. Yeah, ma'am. Thank you. Ma'am, one thing I want to know, like the presentation you gave today, that contains the mains also the same strategy, or you just gave for the prelims? And my second question is, how does the medium like Hindi or English, how does that impact the success ratio if I go through Hindi medium or I go through English medium? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रीलिम मेंस. तो वो मैंने पूरा कवर कर लिया है, एक्सेप्ट मैंने कुछ टॉपिक्स टच नहीं किए हैं, जैसे एथिक्स, एक GS4. सो मेंस में ना लाइक 4 पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4. उसमें ही GS1, GS2, GS3 में ये जो मैंने अभी सब्जेक्ट जो लिखे हैं ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, वो इन 3 सब्जेक्ट्स में कवर हो जाते हैं. GS1, GS2, GS3 में इसमें आ जाते हैं. GS4 पेपर होता है पूरा एथिक्स रहता है, यू नो लाइक हाउ टू गवर्नमेंट कैसे बिहेव करना चाहिए या क्या फिलोसफी एंड ऑल दैट, एथिक्स रहता है. एंड उसके बाद रहते हैं ऐसे. सो ऐसे ये 5 ही पेपर रहते हैं मेंस में. उसके बाद 2 पेपर रहते हैं ऑप्शनल के, 2 ऑप्शनल के और 2 बाकी रहते, वो लैंग्वेज पेपर रहते, वो कोई मार्क्स वाले पेपर नहीं रहते, वो जस्ट क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं. तो ये 5 और ये ऑप्शनल की 2. तो ऑप्शनल की 2 तो वो आप इंडिविजुअली ऑफ कोर्स वो मेंस रिलेटेड ही है. तो ये इसमें ये जो मैंने 5 बताए, इसमें एथिक्स ऐसे छोड़ा मैंने, ये एथिक्स ऐसे छोड़ के मैंने ये GS1, GS2, GS3 की सारी स्ट्रेटेजी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया. इन प्रीलिम्स में भी ये सब्जेक्ट्स है और मेंस में भी है, और मेंस में भी क्या मटेरियल चाहिए वगैरह वो सब मैंने ये रिसोर्सेस इंक्लूड कर दिए. सो देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस दैट यू विल हैव टू गो फॉर
मीन्स, बट वही है कि एथिक्स ऐसे मैंने अपने PowerPoint में नहीं कवर की, दैट इज यू कैन मे बी सर्च अवे, बट एथिक्स ऐसे के लिए एक और सजेशन में बस इतना ही देखे रहूंगी कि जिंदगी में कुछ भी हो रहा है ना, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आपको कोई भी एग्जाम्पल अच्छा लगे ना, तो वो एग्जाम्पल बस लिख के ले लो, रख लो। जैसे कुछ भी हो रहा है, जैसे मलाला को नोबेल प्राइज मिल गया, या फिर इसको, तो वो क्यों मिला कि वॉट एवर, ये तो वो एक दो लाइन में आप लिख के रखो, तो ये सब पॉइंटर्स ना आपको एथिक्स ऐसे के चैप्टर में बहुत सारा यूजफुल आएगा। वो जो कंपाइलेशन हमेशा आपका एक तैयार रखना, एक छोटी सी डायरी बना के रखना, थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स के न्यूज, मतलब कुछ कुछ अच्छी चीजें होती रहती है, डायरेक्टली ऐसे टाइप ऑफ फिलोसॉफी में यूज कर सकते हो, तो वो कंपाइलेशन आप पैरेलली कर देना ऑन टाइम पे। अगर हम एग्जांपल ढूंढने चाहिए, जैसे अजित डोभाल का एग्जांपल है, अजित डोभाल के एग्जांपल में ऐसे में जाके लिख सकती हूँ, और सिविल सर्वेंट हु गिव हिज ओन एंटायर लाइफ फॉर द कंट्री, I can start my essay like that. Essay paper. So I can start my essay, civil servant who gave my entire life for the country and still working for the country. So ये example बहुत important है. So ये लिख के रखना बस एक दो लाइन में, तो ये एक है। और दूसरी चीज मुझे मिस्टेक पूछी थी किसी ने, वो उसमें ये एक मिस्टेक है, I never focused on these two important subject, which is ethics and essay. Ethics and essay are the most scoring subject. अभी जो मैंने पढ़ाई बताई ना, तो वो एक साइड पे रखो, और सबसे ज्यादा आपको रिटर्न ऑन आउट मिलेगा ना, तो वो एथिक्स के ऐसे पे। बट मैं और हमारे जैसे कई लोग रहते हैं जो वो ऐसे सब्जेक्ट, वी कम फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, वी लाइक चैलेंजिंग सम पॉलिटी, लाइक इकोनॉमिक्स एंड ऑल, एंड ये फिलोसॉफिकल ऐसे एथिक्स लिखना हमारे लिए बहुत बोरिंग भी हो जाता है, या फिर समझ ये होता है, तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते। और मेरे सबसे खराब मार्क उसी में आते थे, सबसे खराब मार्क। और जो टॉपर्स आते हैं ना, वो बहुत ही स्कोरिंग मार्क, उनका जो डिफरेंस रहता है वो इसी चैप्टर इससे आता है। सो फ्रॉम बिगिनिंग ओनली यू side by side keep investing your time in this subject, keep building the inventory of material, the examples, especially examples बहुत useful रहते हैं इस subject, examples like अजित डोभाल का दिया या मलाला का दिया, तो examples को compilation रखो। और ये सब कभी भी याद रखना कि ये सब सब्जेक्ट को निग्लेक्ट नहीं करो, ये सब्जेक्ट आप जितना एफर्ट्स दोगे उससे ज्यादा दुगना रिटर्न देगा, और उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आप फाइनल लिस्ट में अपीयर होगे, यू विल बी क्लियरिंग द यूपीसी। सो जस्ट एंश्योर दैट इज व्हाट। या हिंदी इंग्लिश का मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे हिंदी में क्या रिसोर्सेस है मुझे नहीं पता। आई थिंक मलयालम विल बी बेटर फैक्टर, बट यस इंग्लिश में इंग्लिश वालों को बहुत हेल्प होता है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो है लेक्चर्स वो हिंदी और इंग्लिश में कंबाइन है। तो हिंदी में आप समझ तो लेते हैं, और इंग्लिश में डायरेक्टली वो मैगजीन्स में कीवर्ड है, तो हम यू कैन यूज दैट। तो इंग्लिश तो बेनिफिट रहता है, बट हाउ टू टैकल हिंदी मीडियम पेपर, देन आई थिंक मनारम ऑल कैन से बेटर। रामराज, ये आपने जो पहला सेशन दिया देखा होगा, और उसके मिनट्स भी अपलोड हो गए, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी ने कि मीडियम कौन सा बेटर होता है। पहली चीज़ तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका कौन सा मीडियम लेना है। आपका हिंदी में स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी कंटिन्यू करिए, ये मत सोचिए कि इसमें कितना स्कोरिंग है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, तो देखा यह गया कि मेजोरिटी जो सिलेक्शन होते हैं ना 1000 में से, वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। और मेंस में लिखने के लिए इंग्लिश मीडियम को तो सपोर्ट होता है, हिंदी मीडियम को लिखने में टाइम लगता है। कई बच्चे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ये इंग्लिश को प्रीफर है। बट मीडियम का आप खुद डिसाइड करें कौन सा बेटर है। यदि आपको इंग्लिश स्विच करना है यार, नहीं वैसा मत करो। यदि आपका दोनों अच्छा है तो मैं बोलूँगा इंग्लिश प्रीफर करो, ठीक है। आपको जैसे लास्ट टाइम राव साहब आए थे, उन्होंने मेंस हिंदी में इंग्लिश में लिखा, क्योंकि उनको पता है कि टेक्निकल वर्ड है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कीवर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में अच्छा लिख पा रहे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू हिंदी में दिया, और उनको इंटरव्यू जो इंग्लिश मीडियम वालों से अच्छे मार्क्स आए थे उनके। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में ना आपका पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर करता है, बजाय कि आपका नॉलेज मेंस में देख लिया उन्होंने, ठीक है। तो आई होप रामराज आपको ये क्लियर होगा। अब कोई नेक्स्ट कोई आए तो कोई पूछो प्लीज। थैंक यू। And ma'am, hello. Yeah. Ma'am, if you don't mind, can I ask one question, like in your personal point of view? Depends on the question. Yeah, if you can answer for that.
What is your Let question? me ask let me ask the question, like, ma'am, first you were done from BTech, you were gone from MBA sector, from then you were shifted from this side, like, any particular motive, any inspiration for this, or like, ओके ओके दिस इज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पे और फिलोसफी पे और वैल्यू सिस्टम पे एंड हाउ वी परसीव द लाइफ इटसेल्फ इट डिपेंड्स okay, so I am very passionate for social work. So be it UPSC or not being in the UPSC, whatever in the middle, I keep doing the social work even now also. So social empowerment, बहुत सारी चीजें मैं पॉलिसी लेवल पे अभी भी करती हूँ. I even write articles in newspaper in advocating the policies. So फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को कभी थोड़ा सा इंजीनियरिंग आई कुड नॉट एक्चुअली टेक मच आउट ऑफ इट पर्सनली. तो मुझे थोड़ा सा वो ये हुआ कि जितना मैं कर सकती थी या करना चाहिए था इंजीनियरिंग के टाइम नहीं हो पाया. बट एमबीए वाज अ गुड एक्सपोजर, वेरी गुड एक्सपोजर. इसमें मैंने जॉब भी कॉर्पोरेट में अच्छे से कर ली हाई पैकेज में. बट उसमें क्या होता है ना कि एक तुम्हें लार्जेस्ट सोसाइटी के लिए जो करना है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है कि यू आर बेसिकली यू नो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी एंड मैं आप वर्क कर रहे हो. तो वो होता है कि एक मैं सोसाइटी में ग्रास रूट के लिए क्या कर रही हूँ. चलो मेरा प्रोग्रेस तो मेरा प्रोग्रेस है, इसलिए मैंने पावर पॉइंट में क्लास में एक स्लाइड दिया है. एक्चुअली व्हेन द डे फर्स्ट आई एंटर्ड इनटू आईआईटी एंड इट वाज द फर्स्ट सेशन, यू नो फर्स्ट द डायरेक्टर ने जो हमें बताया था कि सक्सेस 3 चीजों में होता है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल. तो इसमें वो मुझे अभी भी लगता है कि पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल. बट हम लोग क्या करते हैं, हम जॉब मिलाते हैं, हम अपनी उन्नति कर लेते हैं, हम अपना यू नो यू लिव अ गुड लाइफ, क्वालिटी लाइफ और वॉट एवर. बट हमने वापस दुनिया को क्या दिया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी रहती है. मैंने यू नो बाय द एंड ऑफ माई लाइफ और मैं मेरे डेथ के टाइम मैंने लाइफ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया. आई वॉज जस्ट अ टाइनी एंट which came onto the earth and went back, right? Did I contribute to anybody? Recently I was listening to Elon Musk also, and he also said same thing, you know, make more for the society than you are taking from the society. So ये जब आपके पास फीलिंग होता है तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म को सर्च करने लगते हो या आपने ऐसे चीजों में काम करने लगते हो जो आपको लगता है कि you are giving the impact to the society. So that's the reason I got inclined to the UPSC. एंड जब मैं यूपीएससी में मैंने स्टडी किया जो भी 4-5 साल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ माय ग्रोथ एज अ पर्सन, एज अ ग्रोथ. क्योंकि मेरी ह्यूमन विजडम जो है वो बहुत इंक्रीज हुई, वो मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई, मेरी वैल्यूज बहुत सारे फर्म हो गए. आई कुड सी आई कुड बिकम मोर रैशनल. You know, political science, and when you study all this Socrates, Plato, all these theories, you can become more rational, you become more democratic, you become more inclusive. So ये philosophy बहुत important है कि तुम सोसाइटी के लिए अभी वो विजडम के साथ कर सकते हो कि मैं रिच और पुअर में डिफरेंस नहीं करूंगी, तो मैं हर किसी के लिए सुनूंगी, हर किसी के लिए करूंगी. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हर समझना, एम्पैथी डेवलप करना कि हर सोसाइटी का हर सेक्शन के क्या प्रॉब्लम्स है, वो एम्पैथी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कि नोइंगनेस होना फर्स्ट, उसके लिए फीलिंग होना कि मुझे उनके लिए करना है या वुमेन के लिए करना है या किसी के लिए करना है. तो वो फीलिंग एक बहुत ड्राइविंग फैक्टर बन जाती है. इसके बाद आपको देन यू स्पेंड दिस. यूपीएससी ब्रॉट that wisdom to me, and I'm very happy and I'm thankful to the UPSC journey. Ki do UPSC ho ya na ho, but it made me a good human, and definitely I'll contribute better now in a society than the way if I would have just stayed in a corporate sector and looked after only my benefits or own my salary and all things. This is now bigger picture, which also Manaram is also doing very, very good works, despite, you know, he has also joined a good job, but still he is going back on the field, doing for his community, for his state, for his rural people. So this is very important that we go back to the people and give legacy उन्हीं की रहती है. नहीं तो फिर तो आप आए गए आप खुद के लिए जय, एंड यू बट लीगसी 100 साल बाद भी गांधी जी की रहेगी, विवेकानंद की रहेगी, क्योंकि वो उन्होंने कुछ किया सोसाइटी के लिए. अच्छा मैम, इसमें मैं एक चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा कि ये किसी ने पूछा कि आपके पास ये कहाँ से एनर्जी आती है, कहाँ से मोटिवेशन कैसे बना. तो मैं किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था जो हमने फॉर्म रिलीज़ किया था कि मेरे प्रीलिम 3 साल देने में मुझे
अभी मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मैं कैसे करूँ? तो देखो यार, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको तो तैयार करना नहीं चाहिए अभी। फोर्थ ईयर के बच्चे सोच सकते हैं एमटेक का तो यार करना ही चाहिए, क्योंकि आप तो मतलब आपने अलग सोचा है कुछ। हाँ, तो 1-2 टास्क मैं देता हूँ आपको, एक्टिविटी देता हूँ, यदि आप करें तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का मौका भी मिलेगा। एक चीज़ ये कि आप IIT जोधपुर के आसपास जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जो ग्राम पंचायत से आसपास, आप विजिट करके आइए, वॉलेंटियर तैयार हुए, वहाँ कौन सरपंच है मैं निकालूँ, कॉन्टैक्ट नंबर मैं दूंगा, आप जाइए बात करिए उनसे। संडे मैं कॉलेज में था, एक परिवर्तन नाम का एनजीओ, तो अभी पता नहीं चलता नहीं चलता, हम आसपास विजिट करके आते थे, स्कूल विजिट करके आते थे। IIT जोधपुर की बात है, जब हम वो केंद्रांचल में रहते थे। अभी आप आई जो वॉलेंटियर है जाके विजिट करके आइए, फिर वहाँ क्या सीख के आए इस ग्रुप में शेयर करिए, फोटो शेयर करिए। फिर IIT जोधपुर के मतलब जोधपुर के जो कलेक्टर है अभी, गौरव अग्रवाल जी, वो हमारे संजय राव साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो 2000 शायद IIT कानपुर के स्टूडेंट है, और 2013 के वो मतलब टॉपर भी रह चुके हैं। फिर उनसे विजिट करके आइए, मिल के आइए। कैसे मिले ना, हमारी जिम्मेदारी। आप वैसे कॉलेज से डायरेक्ट संपर्क करोगे तो मिल जाओगे। इससे जो बच्चे कंफ्यूजिंग है ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप रियल एक्सपोजर मिलेगा। आप ये तो थ्योरेटिकली मैम ने पूरा अच्छा आज बिल्कुल सही तरीके से बताया कि जिनको बिगिन कैसे करना है, एकदम स्ट्रेटेजिकली बताया कि कैसे इकोनॉमी शुरू करो, आप कुछ नहीं पता तो फिर पॉलिटिक्स शुरू करो, स्ट्रेटेजिकली बताया, वो फॉलो कर सकते। बट जो बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते, आप ग्राउंड पे उतरो यार, सैटरडे संडे आप ऐसे ही टाइम करते हो, स्पेंड करते हो। एक चीज़ और, जैसे अजीत दोवाल का मैम ने मेंशन किया, तो एक मूवी एक वेब सीरीज है सलाहकार करके, वो उन्हीं पे बेस है, शायद एक और भी बन रही है अजीत दोवाल सर पे। तो आप वो सच में पता करना तो एक बार थोड़ा इन डेप्थ जाइए, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। फिर पता क्या, आप डजंट मैटर UPSC सर्वेंट बने नहीं बने, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जरूर मिल जाएगा लाइफ में। अब कोई और क्वेश्चन बच्चा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। I had another question, ma'am. You talked about the bright spots, right? Like in terms of making you a good citizen, as well as maybe enhancing your prospects. So I wanted to understand the pain point in terms of like your career. For like you were prepared for the last 4 times, right, and cleared CSFA. I think you can mute because echo, right? Your voice is not audible, Neil, properly. Am I audible now? Yeah. Yeah. So I wanted to understand your pain points, right, in terms of maybe preparing it for a extended tenure around 3-4 years or 4-5 years, right? Any pain points which you saw, and you would like to enlighten us. You talked about the bright spots, right, in terms of making you a good citizen or maybe contributing to the society. But any pain points which you see in the last 4-5 years of your preparation? पेन पॉइंट्स तो हर किसी के इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, तो मेरी इंडिविजुअलिस्टिक बहुत अलग जर्नी है देन व्हाट यू नो Manaram और ऑल दिस अदर पीपल हैड, बिकॉज क्योंकि मैं I have my family and like you know with my children I had to prepare, so that was my individual journey itself. It was very challenging. So मेरा तो ये छोड़ दो, बट वही है कि इन जनरल एक केस जो कॉमन सबके लिए रहती है वो होता है कि डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब ऐसे कि कई बार आपको ये होता है कि आप कोशिश कर रहे हो और कहीं पे आपको सक्सेस नहीं मिलता, you cry and sometimes you depressed. So why I'm saying these words, it's not like exactly I did this happened to me. It is because last year जो शक्ति दुबे टॉपर आई थी, आप इसका उनका इंटरव्यू देख लो तो उन्होंने सेम वर्ड्स यूज किए. she told like I cried several times, I was depressed several times, and she 7 years के एफर्ट्स के बाद she came टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1. सो ये तो कॉमन फेज है कि डिप्रेशन आता है, कभी कभी लगता है कि छोड़ दो, कभी लगता है नहीं हो पाएगा. तो ये हर किसी के टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 का भी क्वेश्चन है, ये जो भी नहीं लगता उसका भी क्वेश्चन है. तो उसको तो डील करना ही है. न्यू डे, यू हैव टू स्टार्ट विथ न्यू माइंड एंड फ्रेश माइंड एंड अप पॉजिटिवली. सो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी फॉर एवरीबडी. धन्यवाद. अंशिका, आई थिंक अब इसको क्लोज करें. सो आप अंशिका कुछ कहना चाहते हो, आप कुछ बताना चाहते हो तो एक बार प्लीज. So like I want to request everyone to please turn on their cameras so we can take a good photo.
if everyone can turn on their cameras, then it could be very good, like peace, so that we can take a group photo. Okay, great. Now, like Manaram, if you want to add on something. ओके, फर्स्ट थिंग कि ये जो हमारी कम्युनिटी है 300+ है, कुछ अंडरस्टैंड करने आते हैं वो भी अच्छे हैं, कुछ सच में प्रिपेयर करेंगे वो भी अच्छा है। और जो कम्युनिटी जो टीम काम कर रही है हमारी, उनको जैसे अंशिका है, शायद सिद्धूल करके आज एक और जुड़े हैं, और कुलकर्णी है, कुशवेंद्र है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप कॉलेज के एकेडमिक्स के साथ आप कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैम को भी मैं थैंक यू देता हूँ, आज आपने समय निकाला। एंड अभी जैसे हमने 2 सेशन लिया, पहला इन जनरल था, अभी इस बार हमने प्रीलिम स्पेसिफिक कैसे तैयारी करनी, क्या रिसोर्सेज है। फ्यूचर में भी हम आपको हर 2-3 महीने में एक बार लेके आएंगे। फ्यूचर में कोशिश करेंगे मेंस स्पेसिफिक लेकर आएँ। और अभी जो हम काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप 1 साल बाद में आप में से कोई आए, तैयारी करे, वो कुछ इस सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को कुछ गिव बैक दे सके। तो ये एक काइंड ऑफ सर्किल एक होता है ना, कि एक सर्किल बन जाएगा। तो हमारा यही पर्पज़ है। जो हम IIT जोधपुर में शुरू किए, ये पुराने को ओल्ड IITs में कई सालों से चल रहा है। तो आप जैसे किसी कम्युनिटी वाला पुराना IIT से पूछ सकते हो आपके और क्या एक्स्ट्रा है जो हम एड ऑन कर सकें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये कि जो कम्युनिटी, मैं चाहता हूँ कि आपस में आप ग्रुप डिस्कशन खुद करें, खुद ही क्वेश्चन पूछे, खुद ही एक दूसरे को हेल्प करें। जैसे एक फोटोज का कुछ क्वेश्चन पूछा था कि अपलोड करने में क्या करना चाहिए, तो कुछ स्टूडेंट ने खुद ही आंसर किया। ये तो हम चाहते हैं, हमारा पर्पज यही है कि खुद ही सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए ये, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, आप सब आए।